You have to speak. अरे नहीं, Done speaking. डन स्पीकिंग करो. Hello. 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 Yeah, can you hear me, sir? Hello. 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 Am I audible? Hello. Soumya, you are audible, not a problem. Okay, sir. Hello. Hello. Hello participants, I welcome you all for the webinar. Hello. 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 Yes, welcome Lalit Saab. Thank you. Thank you. Welcome, welcome. ते मीटिंग आयडी पाठवलं तर काय एंटर होत नाही डेलिगेट्स त्यांना ते परत सगळं रजिस्ट्रेशन करायला सांगते ती प्रोसेस. असं आहे का? आता ते येत असतील तर त्याला दे कॅन एंटर. सचिन ते आपण जे बोललोय ना हा त्या पद्धतीने इट शुड हॅपन. ठीक आहे बघू कसं होतं. Welcome to everyone. Can we have introduction? So Can you have our introduction on chat box? we have Mr. Aniruddha, Mr. Ashwini Giri, Dr. Ajay, Mr. Hanumant Patil, Kiran, Mithalal Jain, Nilesh Gore,
and Nitin Mudalgikar. So can you please introduce yourselves in the chat box? Okay, ma'am. Mr. Ashok Godani, welcome. We have Mr. Chirag Ahuja from Jyoti Electric and Trading. Welcome, Chirag. We also have Kiran from Textile Business and MD Viraj Spinners Limited. Bipin Sheth, sir, welcome. Mr. Bipin Sheth is a past president. I welcome Mr. Bipin Sheth. Yeah, thank you. Hello. Hello. Yes, sir, welcome, welcome, sir. Yes, sir. Bipin Sheth is immediate past president of Pune Electric and Electronic Association. I welcome you, sir. Thank you. Mr. Lalit Gandhi, I welcome you. Thank Sir you, is the Rajendra president ji. of Western Maharashtra Chamber of Commerce and Industries, Agro and Education. Welcome, sir. બિપિન ભાઈ તમારું સ્વાગત છે. Yes, Yes, sir. Mr. Then I welcome Mr. Swapnil Shah has come, has joined. I think he should have joined by now. Mr. Swapnil ji. No, not yet, not yet. Okay, okay. I welcome Mr. Kishore Oswal. Kishore ji, welcome. Yes, thank you. And Welcome, nice Kishore to see ji. you. He's Mr. Kishore ji is the president of Pune Electric and Electronic Association, Pune. Welcome you, sir. We also have Mr. Santosh S. Chaudhary, Director of SCJ IT Solutions Private Limited. Mr. Sandeep Dikshit has also joined us. He's the founder of Soya Bean Food Industry. Welcome, sir. Welcome. CAS Ibrahim from Pune has also joined. ललित साहब, स्वप्निल जी आए हैं, स्वप्निल शाह साहब. 1-2 मिनट में आएंगे, 2 मिनट में ज्वाइन करेंगे. Okay, 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 sir. I also welcome Mr. Nitin Mudalgikar from Gauri Shankar Knowledge City, Satara. Welcome, sir. Welcome. मला वाटतं किरण तारळेकर आमच्या विटा पॉवरलूम असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत, ते सुद्धा जॉईन झालेत. Okay, welcome, Kiran, sir. We welcome you on the behalf of RISE, Yes, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. RESMAC, and Pune Electric and Electronic Association, Pune. Yes, sir. Okay. Thank you. Mr. Bharat Shah from Bharat Trading Corporation, Pune is also here with us. Welcome, sir. Welcome, Mr. Bharat. Welcome. Mr. Kiran also has joined. Mr. Kiran Taralkar. Mr. Suryakant also is there. Suryakant Saleji. Thank you, sir.
Welcome, Mr. Rajesh Patel. I would request all the participants who have joined to introduce themselves in the chat box. जॉईन दिसतोयच मला इथं. जॉईन दिसतोय, तुझा फोटो दिसतोय, नाव माझं दिसतंय. रिनेम तो व्हिडिओ चालू कर. रिनेम कर तिथं तुझं नाव टाक. All the participants are requested to kindly keep themselves on mute. Thank you. Hello. Dr. Yogesh is there. He has joined. Dr. Yes, Yogesh I've Pawar. joined. I've joined. Thank you. On the behalf of RISE, I welcome you all. We are conducting a wonderful seminar today, wonderful webinar today in association with Western Maharashtra Chamber of Commerce, Industries, Agro and Education, and Pune Electric and Electronic Association, Pune. It's a first joint webinar by these two established, well-known organizations. I'll brief you about RISE, what RISE is and what it has been doing from last 2 years of its formation. RISE is 2-year-old new age Chamber of Commerce. It is formed by the alumni of School of Inspirational Leadership, which is a business consulting company, with a simple and we can say a simple motive to help entrepreneurs. It is an organization formed by entrepreneurs, for the entrepreneurs, by the entrepreneurs, which works for the entrepreneurs. It's a 2-year-old organization based on values of collaboration, contribution, and growth. This small baby of 2 years old has taken a big task in hand, that is Inspiring India movement. We will, Dr. Yogesh Pawar, who is the chairman of RISE, I'll request him, he is the chairman of RISE and founder of School of Inspirational Leadership. I'll request him to give an idea about Inspiring India movement, which is a brainchild of him. And then I'll introduce and we'll begin the further proceedings of the webinar. Dr. Yogesh Pawar, I welcome you, please. Good evening, everybody. Good evening. I hope you can listen to me. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much. First of all, Mr. Gandhi, thank you very much for joining in. आणि Mr. Vipin Sheikh, खूप बरं वाटलं की आपण थोड्या वेळातच एकत्र काम करायला लागलो. थँक्यू व्हेरी मच. मिस्टर विपिन शेठ जी, थँक्यू व्हेरी मच की तुम्ही इलेक्ट्रिकल असोसिएशन बरोबर आपण काम करायला सुरू केलं आणि खूप कमी वेळात तुम्ही फार सुंदर पद्धतीने कोलॅबोरेशन ह्या व्हॅल्यू दाखवली. तुम्ही अराइज मध्ये पण आहात, तुम्ही इलेक्ट्रिकल असोसिएशन मध्ये चांगल्या उच्च पदावर आहात आणि हे सगळं करत असताना तुम्ही छान ही गोष्ट घडून आणली. सो थँक्यू व्हेरी मच. आणि yes sir, thank you for that, and anything that will help our associate members, I'm ready to do that. Wonderful, very nice, very nice. So quickly to brief everybody, Hindi, English, Marathi, can you chat box for please मला लिहा Hindi, English, Marathi. Please write down Hindi, English, Marathi. Okay. Anything is okay. Marathi, all English, Hindi, okay. ठीक है, फिर कोशिश ये रहेगी कि मैं हिंदी और इंग्लिश का प्रयोग करूं, बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग दैट हिंदी मराठी फेयर, नो प्रॉब्लम. सो कोशिश ये रहेगी कि हिंदी
और इंग्लिश का प्रयोग हो, और जहां जहां पे भी ऐसे लगे कि मुझे एक्सप्रेस करने नहीं आ रहा, मैं बीच में मराठी ठोक दूंगा, ठीक है। सो वंस अगेन वेलकम टू द वेबिनार। ये सीरीज वेबिनार की सीरीज को इंस्पायरिंग इंडिया मूवमेंट की सीरीज कहा जा रहा है, और इंस्पायरिंग इंडिया मूवमेंट ये कंसीव की गई थी 2 साल पहले। पर जब भी कोई ऐसी मूवमेंट जो कोलैबोरेटेड है, जो लोगों के साथ चलनी है, जो कंप्लीटली कोऑपरेटिव मूवमेंट में चलनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग साथ जुड़ते चले जाएं और अच्छे धोरण से लोग साथ में जुड़े। मुझे ये बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि अराइज के मेंबर्स जो अलुमिनाई थे, मैं जो कंपनी चलाता हूँ उसके अलुमिनाइज हैं, पास आउट्स है, उसके सारे बिजनेसमैन हैं, और उन्होंने मिल के आके ये जो काम करने का सोचा है, उनके लिए great honor to all of them. Let me also name them few. We have Niranjan Gadgil, who is the director for Strato India Private Limited. We have Gopal Oza ji, who's the treasurer, who's also the director of Oza Group. Mr. Chetan Dharia, who's the head for discipline community that we have. He's the director for and founder for Anand Industries. Shri Mohan Anturkar ji, who's the program director and project director for Inspiring India Movement. We have Rajendra Biniwali ji, who's the project director for he's the director of CRAM, and of course important element is that he's also leading the engagement piece of entire Inspiring India Movement. Now Sachin Thurat, who happens to be in operations, digital marketing is handled by Soumya Grohar, and Manya Kaushik is the marketing manager that we have. So all of this team is extensively working in collaborating 1 lakh entrepreneurs. 1 लाख entrepreneurs को पूरी इंडिया में जोड़ने का काम ये टीम मिलके कर रही है, और this is, as I said, this is a movement जहां पे हम बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छे लोगों के साथ ये काम कर रहे हैं। So आज तक अराइज ने हमेशा कोई एक्टिविटी अगर की है तो उसे लर्निंग बहुत स्ट्रांग, वो बहुत ऊपर रखी है, लर्निंग बहुत ही ऊपर रखी है। इसका कारण यह है कि अगर लोग नई चीजें ध्यान में आता है लोगों के, तो नई चीजें करने का दिल करता है और नई चीजें एक्टिवेट होती है। सो just to little bit tell about who I am. My name is Dr. Yogesh Pawar, as it mentioned. I'm a predictive psychologist. Basically by education I'm a psychologist, और एक कंपनी चलाता हूं जिसका नाम है स्कूल ऑफ इंस्पिरेशनल लीडरशिप। ये व्यावसायिकों की स्कूल है जो पुणे में है, और यहाँ से इस एनजीओ का जन्म हुआ। बट ये सिर्फ कारण मात्र था, इसे बड़ा बनाने के पीछे ये इन सारे लोगों का हाथ है। सो दैट इज अ लिटिल अबाउट अराइज, दैट इज अ लिटिल अबाउट अस। धोरण हमारा ये है कि अगले 1 साल में बाय 22 October 2021, आई एम डिक्लेयरिंग द डेट, 22 October 2021, we will be able to fund more than 100 companies. We will be able to fund. So ये हमारा पहला धोरण है। We want to fund 100 Indian companies, जिसका काम शुरू करते करते हमारे पास आज कम से कम 5 कंपनीज हैं जो लगभग फंडिंग मतलब ऑलमोस्ट होने की करार पे है। हमें कम से कम 25 इज द नंबर, 25 इनोवेटिव मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाने हैं, और हम आज सारे एंटरप्रेन्योर्स को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ये पूरी कम्युनिटी मदद कर रही है। अगर कोई जेन्युइनली इनोवेटिव प्रोडक्ट है, जैसे कुछ मेरे कुछ दोस्त हैं जो सोलार में काम कर रहे हैं, मैं उनकी प्लांट में गया, जब समझने की कोशिश करी तो इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है कि उसे लोकल प्रमोशन होना बहुत जरूरी है, और लोकल प्रमोशन करके उसे ग्लोबल लेके जाना। तो हमारा ये दूसरा धोरण है। तीसरा धोरण है कि कम से कम हम 25 एंटरप्रेन्योर्स ऐसे ढूंढे, 25 एंटरप्रेन्योर्स ऐसे ढूंढे जिनको समाज के, बिजनेस के सब टॉप बिजनेसमैन, 2,000, 5,000, 25,000 करोड़ के मालिक हैं, ऐसे लोगों की मेंटोरशिप मिले। तो मेरी बातें कुछ लोगों से चल रही हैं, जैसे प्रदीप जी जो आज या और भी कुछ, आई वुडंट वांट टू नेम देयर वर्ड्स। कोशिश ये है कि हम ऐसे लोग, ऐसे बिजनेसेस ढूंढ पाए। तो ये ढूंढने का सिलसिला इंस्पायरिंग इंडिया मूवमेंट है।
हमने ये पहले फिजिकली कर रहे थे, आप अगर देख रहे हैं हमारी एक्टिविटीज सारे फिजिकल चल रहा था, अब हमने डिजिटल करना शुरू हो गया। तो आप अगर ऐसी एसोसिएशंस हम अगर साथ में जुड़ते हैं तो क्या होगा? द बेस रूट ऑफ अराइज इज लर्निंग। द रूट ऑफ अराइज इज नॉट वाज नेवर कि हम लोग आए और एक दूसरे का धंधा बढ़ाएं। द रूट वाज लर्निंग। इसीलिए नई नई चीजें जैसी होती रहती है, नई नई चीजें बाहर निकलती रहती है, वैसे ही अपने कोलैबोरेशन, अपने आप नेटवर्किंग, अपने आप धंधा बढ़ जाता है। सो इट्स द रूट इज 100% लर्निंग। सो इस वजह से क्या हो रहा है कि हर बार ये संस्था आगे जाने की कोशिश कर रही है बाय कोलैबोरेटिंग विद एवरीबॉडी। तो हमें ऐसा लगता ही नहीं कि कोई हमारा कंपटीशन है, हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम अलग अलग एसोसिएशन है। हमें ऐसे लगता है कि इंस्पायरिंग इंडिया मूवमेंट तो एक मूवमेंट है, ये किसी एनजीओ की मूवमेंट नहीं है, ये मूवमेंट है जो बिजनेस वालों ने शुरू करी है। और इसीलिए मेरा ये सबसे अनुरोध है कि आप इस मूवमेंट का हिस्सा बने। बिफोर द वेबिनार एंड्स आपके पास एक लिंक होगी जो मैसिव एक्शन क्लब, इंस्पायरिंग इंडिया मूवमेंट मैसिव एक्शन क्लब, ये डिजिटली कनेक्टेड हब है जहां पे आप जा सकते हो। फेसबुक का एक पेज है, क्लोज ग्रुप है। जब आप बिजनेसमैन हो तो ही इसमें एंटर हो जाओगे और उसके बाद धीरे धीरे आपकी जितनी क्वेरीज हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट बनाना है, जैसे कोई इनोवेशन करना है, सेल्स बढ़ाना है, फाइनेंस में मदद चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे बिना मूल्य आपको दी जाएगी, बिना मूल्य। बिकॉज दिस इज व्हाट इंस्पायरिंग इंडिया इज ऑल अबाउट। इंस्पायरिंग इंडिया इज ऑल अबाउट making a difference to the entrepreneurial community and taking away the barrier of money. Taking away the barrier of money. That is our goal. And when people see success, they automatically will support in one or the other way. They automatically, क्योंकि जब इंसान को मिलता है वो देने की थोड़ी सी मेहनत रखता है. And we are okay with whoever is ready to give. Because we have started giving first. That is the whole fundamental of this movement. The fundamental of movement is that you start giving first rather than asking for it. You start giving first. So जब आप शुरू करते हो देना तो आपको ये नजर आता है कि आपके इर्द गिर्द के लोग आपको देने को तैयार हैं. So that's the basic fundamental of Inspiring India Movement. इसका एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस, लोकेशन अभी तय होनी है, बट बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस 22 को होगा, 22-23 अक्टूबर 2021, और ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस होगा जहां पे मेरा अनुमान ये है, सपना है, जिसमें हम सब साथ में अगर काम करें तो ये जरूर पूरा होगा कि ऐसा एक कॉन्फ्रेंस एमएसएमई का बने जिसमें 1000 लोग अंदर हो और 100 लोगों को फंडिंग दी जा रही है, 25 मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट मिल रहे हैं, एग्जीबिशंस हो रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स के जो ग्लोबल हो सके। ऐसा ये कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी डिजाइन हो चुका है और हम ये काम शुरू कर दिया है। सो द आइडिया हियर इज all of us can support each other and grow. Okay, so to give you a little brief, I run 3 companies. And this company is what I invest my time in because मुझे लगता है कि ये शायद पैसे के ऊपर का काम। So that is the motivation that I have. लोग पूछते हैं कि सर आपका मोटिवेशन क्या है? Honestly, कम उम्र में पैसा जरूर कमाया और सबकी दुआओं से कमाया, अब शायद देने की बारी है, तो मैंने ये देने का काम लास्ट 5-6 साल से शुरू कर दिया। एंड आई थिंक विद ऑल माय डियर फ्रेंड्स हु आर सपोर्टिंग, विद ऑल द एसोसिएशंस लाइक यू हु विल सपोर्ट, वी विल डेफिनेटली रीच दैट मार्क। 1 लाख इज द गोल माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप देखोगे यहाँ पे हम 150 लोग हैं आज वेबिनार में, हर वेबिनार में हमारे पास 150-200 लोग जुड़ रहे हैं, इसका मतलब 1 लाख का नंबर कोई दूर नहीं है। आई होप मेरा जो ये एक्सप्लेनेशन था ये आपके दिल तक पहुंचा है। और अगर आपको ये लगता है कि कोई ऐसी मूवमेंट होनी चाहिए और उस मूवमेंट में आप उसका हिस्सा होना चाहिए, प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज इट विल ओनली बेनिफिट द कंट्री। एट द एंड ऑफ द डे, मैं as I said, I'm also a teacher by heart. I always say that the solution to any problem is creation. I'll repeat, the solution to any problem is creation. आप जब क्रिएट करते हो तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकलते हैं। सो क्रिएशन इज द गोल। इंस्पायरिंग इंडिया मूवमेंट ये हमारी इंजीनियरिंग को चैलेंज करेगा, ये हमारी फाइनेंसेस को चैलेंज करेगा, ये हमारे सेल्स को चैलेंज करेगा, ये हमारे ऑपरेशंस को चैलेंज करेगा। जब इस तरीके की चीजों को चैलेंज किया जाता है तो इंसान आगे बढ़ने की उम्मीद रखता है।
And I think the pandemic, COVID, has given this great opportunity to rethink. ये जो new normal बना हुआ है is a great opportunity to rethink. And that is how Inspiring India movement is moving forward. I once again humbly thank Lalit Gandhi ji, Mr. Sheth, for being a part of it and also spreading this word, Gandhi ji, and also Sheth Saab. Thank you very much for spreading this, because this is a very pious work that we are intending to do. And I'm sure in this entire process, all of us will emerge as better businessmen, as better contributors to the country, right? So thank you very much. And I wish all the best to all the participants who will learn a lot from Mr. Daftardaar. He has already visited Arise. He has been into physical sessions, and now we requested, and he's been kind enough to come again and to help us. So all the best. Thank you, Raju, for giving me this opportunity. And now you can start off with this. There is already a link, if you see on your chat boxes. Massive Action Club की लिंक आपके पास आ चुकी है. आप उसे क्लिक करके उसमें उसे 24 घंटे लगते हैं एंटर करने के लिए, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर उसे चेक करता है. तो आप प्लीज उसका एक हिस्सा बने, और हिस्सा बन के we will start engaging with each other. जो भी आपकी क्वेरीज है दिल खोल के वहां पे डालिए, बिकॉज हम सारे दोस्त हैं जो एक दूसरे को मदद करना चाहते हैं. सारे प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाले लोग हैं. अगर आप यहाँ पे हो, इसका मतलब आप प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हो. आप जवाब ढूंढना चाहते हो, इसीलिए शायद हम यहाँ पे हैं. So please be a part of this community. धीरे धीरे ये community mature भी होगी, and I'm 100% sure about it. So thank you very much for Rajendra for giving me this opportunity. Thank you. Rajendra, you are on mute. You are on mute. Thank you, Dr. Yogesh Pawar. Thank you for your warm words about Inspiring India movement, which we are seeing it in reality in 2021. I'll take 1 minute once again to welcome Mr. Lalit Gandhi, who is the president of Westmac, Mr. Swapnil Shah, who is the secretary of Westmac, Mr. Kishore Oswal, who is the president of Pune Electric and Electronic Association, Mr. Bipin Sheth, who is the immediate past president of Pune Electric and Electronic Association. Before we start our webinar on services post-COVID MSME, getting all the information about services sector as a MSME, what it requires to get registered, what are the criteria, how it can be accommodated. Mr. Daftardaar, who is a deputy director who will guide us, he will be there in few minutes. But I want to take the best advantage of this time by taking knowledge, by grabbing knowledge from a very renowned person among us as a panelist, Mr. Lalit Gandhi. Mr. Lalit Gandhi ji, I have a question for you. You have been interacting with the government on a consistent basis. You have been traveling with Prime Minister, President on various global trips, or you can say business visits, summits that they are attending. Latest, you are in touch with PMO of that 20 lakh crore liquidity that is being planned in economy. My request to you is, please brief all the members here, all the attendees here, the liquidity, what is being planned on immediate basis, and how can all the participants, they might be having their CCs, they might be having their small loans, how can they immediately go for liquidity with existing setup they have? Please, sir. Okay. Thank you, Rajendra ji, and thank you, Dr. Yogesh ji. ये बहुत ही अच्छा प्रयास है. आपके माध्यम से अलग अलग सब्जेक्ट पे हम सभी लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं. एज अ मूवमेंट हम सबको साथ में लेके डेवलपमेंट के इस बात पर आगे जाने का प्रयास करते हैं. हम सब अब जानते हैं 2 महीने से अधिक का समय हो गया है हमारा लॉकडाउन में बंद रहने का, और विश्व में पहली बार ऐसी आपत्ति हम सब ने अपने लाइफ में देखी है जो अनप्रेसिडेंटेड है. क्या होगा आगे आज भी किसी को पता नहीं है, और जब तक वैक्सीन आएगा नहीं तब तक हमारा फ्यूचर क्या रहेगा ये भी हमें पता नहीं है. लेकिन ये सारे निगेटिव्स में हमें हाथ पर हाथ रख के बैठ के नहीं चलेगा. हमें हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा. और फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट पूरी ताकत से इसके अंदर लगी हुई है कि कुछ न कुछ स्टिमुलस हो या बूस्टर हो या
लिक्विडिटी सपोर्ट हो, किसी न किसी माध्यम से हमारे इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे लाने का गवर्नमेंट सीरियसली प्रयास कर रही है। हमें कोई पॉलिटिकल एंगल से किसी बात पे जाना नहीं है, लोग दोनों बाजू से बोलते रहेंगे, हमें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। बट मैं जितना पर्सनली ये 2 महीने में भी, इसके पहले तो मैं देखता ही हूँ, बट ये 2 महीने में पर्टिकुलर लॉकडाउन के और कोरोना के इस बैकग्राउंड पे गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स है वो मैंने देखे हैं। ये 20 लाख करोड़ का पैकेज बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने 12 दिन का समय, दिन के 12 घंटे काम किया है। मेरे बहुत पर्सनल मित्र है हमारे MOS फाइनेंस अनुराग जी ठाकुर, वो एक कॉमन मिनिस्टर है इन सारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के डिस्कशंस में, पैकेज बनाने के इस एफर्ट्स में। और जब ये पैकेज अनाउंस हुआ तब थोड़ा मैं भी डिस्टर्ब हुआ कि इतनी सारी बातें हमने की सारे मिनिस्टर के साथ मीटिंग के माध्यम से, ऑफ द मीटिंग, पर्सनल इंटरेक्शन में, और एक 2-3 सेगमेंट टोटली इग्नोर्ड रहे इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में। उसमें सबसे बड़ा सेगमेंट इग्नोर्ड रहा रिटेल ट्रेडर्स का। उसके बाद हाउसिंग सेक्टर अभी भी इग्नोर्ड है, टूरिज्म सेक्टर टोटली इग्नोर्ड है। ऐसे 3-4 सेक्टर जो मेजर है लेकिन इग्नोर्ड रहे, ऐसा फील मुझे आया। मैंने फिर से हमारे पिकी के फोरम पे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन मैडम पहली बार आई है पैकेज अनाउंस करने के बाद, 1 घंटा उन्होंने हमारे साथ बिताया और काफी डिटेल इंटरेक्शन रहा। अनुराग जी के साथ मैंने बात करके इंटरवेंशन करवाया और MSME के जो 3 लाख करोड़ के पैकेज में हमने 2-3 दिन पहले लगातार उसका फॉलोअप लेके ट्रेडर्स को इंक्लूड करवाया। और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा हम सबके लिए कि ये 3 लाख करोड़ के पैकेज में MSME में ट्रेडर्स को भी इंक्लूड किया गया है। और निर्मला सीतारमन जी ने भी और अनुराग जी ने भी कहा कि ये 20 लाख करोड़ का पैकेज इज नॉट अ फुल स्टॉप, हमारे दरवाजे खुले हैं और भी कोई स्टिमुलस या बूस्टर 1-आध हफ्ते में आने की संभावना है। हो सकता है 2 दिन में भी आए, 3 दिन में भी आए, लेकिन एक अगला इंस्टॉलमेंट इसका और भी आएगा। और गवर्नमेंट एक पॉजिटिव नोट पे चल रही है कि हमें ट्रेड और इंडस्ट्री सेक्टर के, उसमें ऑल सर्विस सेक्टर भी इंक्लूडेड है, जितनी भी अपेक्षाएं हैं उसमें से मैक्सिमम पूरी करने का हम प्रयास करेंगे। ऐसा ओपन कमिटमेंट PMO को भी है और FM ने भी हमारे मीटिंग में पर्सनली भी दिया है। ये 3 लाख करोड़ का पैकेज पे अगर हम फोकस कर दें कि बाकी सारे बहुत सारे स्टिमुलस है, RBI के जो जितने भी बूस्टर आए हैं वो मार्केट में 5 लाख करोड़ से ज्यादा की लिक्विडिटी क्रिएट किया है। पहली बार जब देखा हमने इनिशियल स्टेज पे, जब रेपो रेट कम करके लिक्विडिटी क्रिएट करने का RBI ने प्रयास किया, तो बैंकों ने लोन देने की बजाय वो वापस RBI में डिपॉजिट में पार्क किया। जब ये बात नोटिस में आई तो FM और सबका डिस्कशन हुआ और उन्होंने क्लियर कट गाइडेंस दिया RBI को कि किसी की बैंक का डिपॉजिट आपको लेना नहीं है, उनको ये मार्केट में ही पैसा देना है। तो आज की डेट में सिचुएशन ये है कि आप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक आपको पैसा देने वाली ही है, क्योंकि ये उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है गवर्नमेंट का और टोटल अपने सेगमेंट का कि उनको पैसा रिलीज करना है। उसके बगैर लिक्विडिटी क्रिएट होगी नहीं। 4-5 लाख करोड़ के RBI के लिक्विडिटी के साथ साथ MSME का 3 लाख करोड़ का पैकेज है। पूरे इसकी SOPs, ऑपरेटिंग गाइडलाइंस इश्यू हो चुकी है, तो गवर्नमेंट ने पूरा उसका गारंटी लिया, गारंटी कॉर्पोरेशन ने ऑपरेटिंग गाइडलाइन इश्यू की है। और इसमें जितने भी एग्जिस्टिंग बोरोर है उनके एग्जिस्टिंग लिमिट, इसका डेट रखा है 29 फरवरी 2020 का। जो भी आपका ऑफटेक होगा लोन का, उसके 20% में आपको ये रिलीज होगा। आपके बोरोर, आप जहाँ के भी जो भी बैंकर है आपके, वो आपको मेल भेजेंगे या जो भी करस्पॉन्डेंस का उनका माध्यम होगा आपको भेजेंगे कि आपको ये 20% का लिमिट लेना है या नहीं लेना है। आपको चॉइस है और आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ऑटोमेटिक रूट पे देने के लिए का एक नॉर्मल बैंकिंग प्रोसीजर उसमें वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आप एग्जिस्टिंग बोरोवर तो बहुत ज्यादा डीपली उनको उसमें जाने की जरूरत नहीं है और कोई एडिशनल सिक्योरिटी नहीं लेनी है। इसका बाकी तो सारी डिटेल मोस्टली आप सबको मालूम होगी। 4 साल का इसका रीपेमेंट पीरियड है। अलग से एडिशनल लोन अकाउंट बैंक अपने रिकॉर्ड में क्रिएट करेगी है 20% का। और RBI का लेंडिंग रेट में 1% प्लस करके देना है और इसका मैक्सिमम इंटरेस्ट लिमिट बैंकों के लिए 9.25% फिक्स किया है RBI ने। उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट बैंक नहीं ले सकती। 1 साल का मॉनिटरियम पीरियड दिया है और टोटल रीपेमेंट 4 साल का है और पूरा एक गवर्नमेंट गारंटेड एडिशनल फंडिंग है, तो कोई एडिशनल सिक्योरिटी देने का कोई क्वेश्चन नहीं है।
तो एक हमारे लिए सभी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मेरा एक सजेशन है, अगर हमें आज कैपिटल की जरूरत नहीं भी है तो हमें ऑप्ट करके रखना चाहिए। इन केस आने वाले एक आध महीने में सिचुएशन अगर और भी ज्यादा खराब होते हैं तो हमारे हैंड में वो रेडी रहेगा, हमारे पास वो यूटिलाइज करने के लिए वो एडिशनल फंड। तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए आज के डेट में तो अवेलेबल यही है। बाकी तो जो फार्मर्स का दिया है, मजदूरों के लिए दी है, या एंड यूजर या ग्रास रूट के लोगों के लिए जितनी भी स्कीम दी है वो पैसा रोटेशन में आएगा। जून एंड तक ये प्रॉपरली मार्केट मनी फ्लरिश होगा, ऐसा आज का गवर्नमेंट का भी एक्सपेक्टेशन है और आरबीआई का भी वही एक्सपेक्टेशन है। थोड़ा इनिशिएट इंडस्ट्री की तरफ से होगा, क्योंकि गाइडलाइन अभी आई है, अभी भी बैंकों में भी इसका पता नहीं है या अवेयर नहीं है। तो एक दो दिन में सारी गाइडलाइंस पेनिट्रेट हो जाएगी। और अगर किसी को कोई इश्यू आते हैं तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या लोकली भी आप बैंकों से थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बना सकते हैं। इसकी हम सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके सारे स्टेट्स में कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रहे हैं। और महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रहा है। जो भी इश्यूज अगर कोई क्रिएट होते हैं बैंकों की ओर से, तो वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से बैंकर्स के चैनल को प्रॉपरली उसके लिए सूचना दी जाएगी और वो अर्लीस्ट पॉसिबल वो मैटर रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा एक मैकेनिज्म पूरे भारत के सभी स्टेट्स के लिए बन रहा है। तो राजेंद्र जी, मुझे लगता है इसके रिलेवेंट किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी या जब भी आपके पास टाइम हो तब आप ले सकते हैं। हेलो, गांधी साहब, अभी ये जो लिक्विडिटी की बात हुई है, हाँ हाँ, this is with government banks only, or even private sector bank also has to lend with that interest? All banks. Interest rate. All banks. It is with all the banks. Yes, all banks. Okay. Meanwhile, अगर मल्टीपल लेंडिंग है किसी एक एंटिटी का अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, तो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से भी आप ले सकते हैं एडिशनल फंडिंग। Okay. ईमेल भी मैं अगर पॉसिबल हो तो चार्ट में डालता हूँ। ये बैंकिंग रिलेटेड अगर किसी को कोई इश्यू आए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं svp@masia। ये हमारे डेडिकेटेड इसके लिए रखा है हमने, ये इश्यूज के लिए। बैंकिंग के 3 लाख करोड़ के पैकेज में अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं तो उसके लिए कोई भी आपके इश्यू है तो आप कर सकते हैं। गांधी साहब जी, इसमें कुछ ये इंटरेस्ट की रियायत की बात हुई नहीं है क्या भाई? कैसे ये इंस्टेड ऑफ अभी इन्होंने जो दिया है 3 लाख करोड़ के अंदर, दे आर गिविंग अस लोन फैसिलिटीज, ये टू पे इंटरेस्ट। हाँ, इसमें कुछ 2 महीने की कुछ रियायत का कुछ ये बात नहीं हुई है, कुछ जिक्र नहीं हुआ उसके बारे में। नहीं, मैं समझा नहीं। 2 महीने का क्या किया है? 2 महीने का जो भी अभी हम लोग जैसे बैठे हैं, हमारा इंटरेस्ट तो चालू है, हाँ, कुछ कंसेशन का कुछ बात हुई नहीं क्या फॉर दिस 2 months पर्टिकुलरली? इंटरेस्ट वेव करने के लिए इंटरेस्ट वेव या सम कंसीडरेशन इन दैट? नहीं, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन वैसा है, जैसे हम लोग अभी 2 महीने 3 महीने घर से बैठे हैं, हमारा इंटरेस्ट तो चालू है, हाँ, तो देयर वाज नॉट अ कंसीडरेशन ऑफ वेवेल और रिडक्शन इन द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर दीस 2 months, ऐसा कुछ नहीं। अभी हम परसुएशन कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, बट वो वेवर के ऊपर कोई डिसीजन आया नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा ह्यूज क्वांटम है उसका। राइट। तो एडिशनल फंडिंग आपको लोअर इंटरेस्ट में देने का गवर्नमेंट का माइंडसेट है, टोटल वेव ऑफ करने का क्वांटम बहुत है, अभी तक उसका डिसीजन नहीं हो पाया है। Whatever interest is there, 50% या 25% waive of something or as a kind? नहीं, मांग तो पूरा 100% वेव ऑफ का, 3 महीने का इंटरेस्ट वेव ऑफ का मांग कर रहे हैं ऑल जनरल पीपल के लिए। इवन हाउसिंग लोन, अदर लोन, सभी लोन के 3 महीने के इंटरेस्ट वेव ऑफ करने की मांग कर रहे हैं। बट वो इतना ह्यूज है कि वो गवर्नमेंट इतना इजी नहीं है वो डिसीजन। वो भी हो सकता है, चलो पूरा नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा या 25%। हाँ, वही अपन पूरा मांगेंगे तो कुछ ना कुछ हाथ में आएगा। अपन कोशिश वही कर रहे हैं, 1 रुपया मांगेंगे तो 4 आने 8 आने जो भी हाथ में आए कोशिश कर रहे हैं। Perfect. Mr. Daptardar, sir is joining in few minutes. He is having a call from Delhi office. He's discussing. So within 5 minutes he will be joining. Meanwhile, we will have some questions to Mr. Lalit Gandhi ji and other panelists also.
No problem. In case participants have any particular question on bank related, anything that they feel that they want to ask Mr. Lalit Gandhi and get the expert advice from him about the liquidity one is planning to avail, you may ask in your chat box and I will ask that question to him directly. Even participant can ask the questions regarding the various remedies being done by government to come out from this pandemic impact on trade and industry. Okay, okay. So there is a question in chat box, Gandhi Saab. I will not tell the bank name, but it's a private sector bank. Okay. And the participant is telling कि बैंक वाले बोल रहे हैं कि उन्हें लोन मिलेगा, but लोन अगर उनका 3 साल का बैंकिंग अकाउंट है या they'll get for a particular period only. नहीं, ये जो 2 साल या 3 साल, उससे ज्यादा लॉन्ग पीरियड का लोन नहीं मिलेगा. ये 4 साल का दे रहे हैं. हाँ, प्लीज. ये पर्टिकुलर जो स्कीम है, एग्जिस्टिंग जिनके भी लोन है बैंक के पास, उनके लिए एडिशनल फंडिंग के लिए है. नया लोन लेने के लिए अपने अलग अलग जो स्कीम है वो अलग है. ये पर्टिकुलर 3 लाख करोड़ का जो स्कीम दिया है, ये एग्जिस्टिंग बोरोइंग जिसका भी किसी भी बैंक के साथ है, उसको भी 2 महीने से सारे बिजनेस बंद है या मार्केट से उधारी आना बाकी है, अभी वर्किंग कैपिटल का शॉर्टेज पड़ेगा जब भी आपका बिजनेस या इंडस्ट्री शुरू हो रहा है या शुरू होगा तब, तो एक 20% का आपके लिए सपोर्ट सिस्टम इमीडिएट तैयार रहे, इसके लिए गवर्नमेंट ने दिया है. अच्छा क्वांटम है और 9.25% इंटरेस्ट मैक्सिमम है. हो सकता है कोई बैंक 7% से भी दे, कोई बैंक 8% से भी दे, वो डिपेंड ऑन बैंक, ये वेरी करेगा, बट मैक्सिमम विल बी 9.25%. और ये 4 साल का इसका रीपेमेंट है और फर्स्ट ईयर इसको मॉरिटम में सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है लोन का. तो आपके एग्जिस्टिंग लोन के साथ पैरेलल अलग अकाउंट खुलेगा. 20% ऑन योर आउटस्टैंडिंग लोन एज ऑन 29 फरवरी 2020. उस दिन आपकी जितनी भी लोन की आउटस्टैंडिंग होगी, ये भी 25 करोड़ के अंदर के जिनके लोन है उनके लिए है. एग्जिस्टिंग लोन के 20% अमाउंट आपको नए लोन के रूप में मिलेगा. नया लोन जो लेना है वो तो आप नया प्रोजेक्ट करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी सभी बैंकों के पास सरप्लस फंड है और गवर्नमेंट का पूरा उनको डायरेक्टिव्स है कि एमएसएमई सेक्टर के किसी भी लोन प्रपोजल को आपको होल्ड नहीं करना है, इसको इमीडिएट डिस्पोज करना है. एफएम ने बैंकर्स के मीटिंग में भी क्लैरिफाई किया है और उसमें कहीं कोई दिक्कत आने जैसा नहीं है. अनलेस आपका प्रोजेक्ट वे करेंगे, उसमें टेक्निकल जो भी इश्यू होंगे वो अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे अपने को देखना है. और इसके लिए जीएसटी में रजिस्टर होना ये मैंडेटरी है, बाकी कोई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है. एमएसएमई में रजिस्टर हो नहीं हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. So it is on existing loan basis or because there is a question again, टर्नओवर बेसिस पे मिलेगा या एग्जिस्टिंग लोन पे, और किसी का अगर एग्जिस्टिंग लोन नहीं है हाँ तो उसके भी नया प्रपोजल, उसका इस पैकेज से कोई कंसर्न नहीं है. ओके ओके ओके. और जिसका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ के अंदर है, इसी उतने सेगमेंट के लिए दिया है. मतलब ये बड़े प्लेयर के लिए ये स्कीम नहीं है. नहीं तो 2-4 रिलायंस जैसी कंपनी 3 लाख करोड़ लेके चले जाएंगे. तो ये उन्होंने उसमें हर्डल रखा है 25 करोड़ रुपीस के अंदर का लोन होना चाहिए और 100 करोड़ के अंदर का उनका एनुअल टर्नओवर होना चाहिए. उसी सेगमेंट के लिए ये स्कीम है, एप्लीकेबल है. हाँ. बट इसमें ऐसे कुछ है या मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडर्स या या इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ट्रेडर्स नहीं थे. थोड़ा सा आप ये करेंगे, ट्रेडर अपने अभी इंक्लूड करवा के लिए है. पहले सिर्फ ये मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई में जो डेफिनेशन में आते हैं उनके लिए ही था, बट अभी जो परसुएशन करके गवर्नमेंट के साथ पर्टिकुलरली हमें मेंशन करना ही चाहिए. नितिन जी गडकरी और अनुराग जी ठाकुर, इन दोनों ने हमें बहुत पॉजिटिवली और सपोर्ट किया प्रधानमंत्री से ये अप्रूव करवाने में, इस स्कीम में ट्रेडर्स को इंक्लूड करवाना, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी. क्योंकि कम से कम इसमें से 1 लाख करोड़ से ज्यादा का अमाउंट ट्रेडिंग सेक्टर में आ सकता है. आज नितिन जी गडकरी का जन्मदिन भी है, हम सब उनको शुभकामनाएं भी देते हैं और उनको धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने हमारी ये डिमांड 48 आवर्स के अंदर क्लियर करके दी है. सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है. जरूर. क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए. जी, मेरा नाम स्वीनी देशपांडे है और मैं एचआर कंसल्टिंग फर्म रन करती हूँ पूना में. जी. मैं सर्विस इंडस्ट्री में बिलोंग करती हूँ और इसके पहले मैंने कभी कोई लोन नहीं लिया है.
तो जब ये एमएसएमई ने मतलब हमारे गवर्नमेंट ने 20 lakhs का लोन एंड ऑल द थिंग्स हैव डिक्लेयर्ड, उसके बाद कुछ फ्रेंड्स से हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने ऐसा सुना कि आज तक अगर आपने लोन नहीं लिया है तो आपको इस पॉलिसी में भी आपको लोन नहीं मिलेगा जैसे। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है, और क्या will I get the loan or not, and if I will get, and what will be the procedure and how? आपका क्वेश्चन क्लब क्वेश्चन है। बेसिकली हमको एक क्लियर कट समझ के लेना है कि ये जो पैकेज दिया है 3 लाख करोड़ का, ये एग्जिस्टिंग बोरोअर्स को एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने के लिए दिया है। सारे जो इंडस्ट्री या ट्रेडर्स अपना बिजनेस रन करते समय जो एडवांस बैंक से लेते हैं लोन, उन्हें अभी शॉर्टेज के कारण बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि साइकिल ब्रेक हुआ है 2 या 3 महीने के लिए। तो वो साइकिल नॉर्मलाइज करने के लिए जो एडिशनल कैपिटल लगेगा वो इमीडिएट अवेलेबल होने के लिए ये 3 लाख करोड़ का लिक्विडिटी बूस्टर है गवर्नमेंट की तरफ से। ये तुम्हारे नए लोन का और इस स्कीम का कोई कंसर्न नहीं है। आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के नए लोन लेने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोन आपको आराम से मिल सकता है। डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट साइज, कैटेगरी जो भी है उसके आधार पे आपको मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फाइन सर, थैंक यू। To all the participants who are there on this webinar, if you have any question related to these kind of schemes that you want to avail, or any technical difficulty you are facing, you can take benefit of expertise of Mr. Lalit Gandhi, and you can ask him a question. You can unmute yourself on your platform, and you can ask the question and take the guidance from him by the time Mr. Daptardar comes in. He's talking to his Delhi counterpart. So we have this opportunity to get the best from Mr. Lalit ji. ललित जी जी सर, एक क्लैरिटी को सुनने में आई थी कि बैंक गारंटीज जो है, बैंक गारंटी जो हम जो गवर्नमेंट को देते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या दूसरे का डिपार्टमेंट है, अगर आपका पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया है तो हमें क्या 2 साल की एक्सटेंशन देनी पड़ती है बैंक गारंटी। अभी इसमें कुछ में आया है शायद यू डोंट हैव टू गिव द फर्दर बैंक गारंटीज, तो उसमें बैंक गारंटी रिलीज होने की संभावना है? ऐसा है, चल रहा है, उसके ऊपर वर्किंग चल रहा है। काफी सारे सेगमेंट से ये डिमांड आई हुई है और हमारे डिस्कशन में ये पॉइंट रेज हुआ है और उनके मेमोरेंडम में भी इंक्लूड किया हुआ है, तो इसमें कुछ ना कुछ आ जाएगा क्लैरिफिकेशन। अच्छा, क्लैरिफिकेशन जाएगा, मतलब क्लैरिफिकेशन विल बी ऑन द पॉजिटिव साइड होने की पॉजिटिव है। ओके ओके, या थैंक यू। मेरा ये 2 महीने के लॉकडाउन के अंदर के जितने भी मीटिंग हुए, एक भी मीटिंग नेगेटिव नहीं हुई है किसी भी अथॉरिटी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये कितना समय लग जाएगा सर? ये जो बोलते हैं एक आध वीक में आ जाएगा। एक आध वीक में आ जाएगा, हो सकता है 31 के पहले आ जाए ये सब। ओके, थैंक यू थैंक यू। सर, इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स आल्सो आर इन्वॉल्वड इन दिस schemes. Can you elaborate on contractor part? Yes, what they can avail? Those who are registered in GST and those entities are business entrepreneurs, all are covered in this scheme. Okay. हाँ ललित जी नमस्ते। ललित जी है मध्यंतरी गडकरी साहेबांच्या बरोबर आपल्या वेबिनार मध्ये ही एमएसएमई ची जी मॅक्झिमम लिमिट 20 करोड किंवा 100 कोटी आहे ती वाढवून त्यामध्ये काय लार्ज स्केल मध्ये 50 कोटी मीडियम इंडस्ट्रीसाठी केली आणि अॅन्युअल टर्नओव्हर 200 कोटी केला आणि तो अॅन्युअल टर्नओव्हरची लिमिट आम्ही 400 कोटी पर्यंत वाढवायचं त्यांना सजेशन अजूनही ऍडिशनल केलेलं आहे। ते 300-350 कोटी पर्यंत ते इन प्रिन्सिपली तयार झालेले आहे। ते म्हणजे तुम्ही टर्नओव्हर तुम्ही थांबवू नका, तुम्ही टर्नओव्हर वाढवा, आम्ही तुम्हाला एमएसएमई मधनं डिस्क्वालिफाय होऊ देणार नाही, ते रिवाइज करतायत। पण पॅकेजमध्ये त्यांनी घोषित केलेली ऍडिशनल 20 कोटीची लिमिट ती आपण सूचना दिल्यानंतर त्याने 24 तासात अमेंडमेंट केलं आणि 50 कोटी करून दिलं। एवढं फास्ट काम मी कधी नव्हतं बघितलं यापूर्वी। येस नाही, निश्चित गडकरी साहेबांचा एकदम अप्रोच पॉझिटिव्ह आहे। पण सर काय होतंय, काय स्पिनिंग मिल मग बसत नाहीत अजून पण ह्यामध्ये, मग त्या बाहेर राहत आहेत। 75 कोटी 100 कोटी पर्यंत इन्व्हेस्टमेंट आणि 200-300 कोटी पर्यंत टर्नओव्हर असं जर करता आलं तर मग ह्या आम्हाला मंडळींना त्यात सामील होता येईल। आता बघा इतके वर्ष आपण 5 कोटी पर्यंत होतो,
नाही मान्य मान्य त्याच्याबद्दल 5 कोटी 20 कोटी झाले ते आपण खुश झालो होतो. ते 20 चं 50 केलं, म्हणजे 10 पटीने वाढवून दिलं. तेव्हा आता मग ते लार्ज इंडस्ट्रीमध्ये जाणार, मग लार्ज मध्ये राहणार कोण? नाही ह्या सिच्युएशन मध्ये मग त्यांच्यासाठी काहीतरी वेगळी योजना, त्यांच्यासाठी वेगळं पॅकेज गव्हर्नमेंट देईल काय, ते चालू आहे ते पण. लार्ज स्केल साठी जर काय आता आलं हातल्या इन्व्हेस्टमेंटला येते त्यांच्यासाठी पण येते. ओके ओके. गांधी साहेब, एक प्रश्न मला आलेला आहे चॅट बॉक्स मध्ये. काही आपल्या याच्यात स्टार्टअपची पण लोक आलेली आहेत, 2 वर्ष 5 वर्ष ज्यांनी बिझनेसेस नुकतेच सुरू केलेले आहेत. ओके. तर त्यांचा हा प्रश्न आहे, मुद्रा लोन हे जे आहे हे तर आपण बघितलंय की 4-5 वर्षापासून सुरू आहे. पण मुद्रा लोन एक्झॅक्टली कोण अवेल करू शकतो आपल्या SME ट्रेडर किंवा या ह्याच्यामध्ये, आणि त्याला काही असं काही गाईडलाईन्स आहेत का, लिमिटेशन्स आहेत का? 10 लाखापर्यंत लिमिटेशन त्याला आता आहे. 50,000 ते 10 लाखापर्यंत कर्ज त्याला मिळतं. 5 लाखापर्यंत कर्ज कुठल्याही कोलॅटरल शिवाय बँका इझिली देत आहेत. खरं तर 10 लाखापर्यंत विदाउट कोलॅटरलच त्यांनी द्यायचं आहे. परंतु काही बँका इन्सिस्ट करतात काही लोकल लेवलवर सेफ्टीसाठी त्यांच्या, पण तेही कंपल्शन नाही आहे त्यांना. आपण जर फाईट केलं, आर्ग्यू केलं तर त्यांना ते विदाउट कोलॅटरल द्यावं लागेल. आणि मुद्रा या लोन योजनेसाठी हायएस्ट कंप्लेंट मी पंतप्रधानांच्याकडे केलेले आहेत. कारण पंतप्रधान त्यांच्या भाषणात रेफर करतात की एवढे आम्ही नवीन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट केले, एवढे लोक बिझनेसमध्ये आले बेस्ड ऑन मुद्रा लोन. पण मुद्रा लोन बँकांनी मोस्टली काय केलं, एक्झिस्टिंग ज्यांचे खातेदार होते लोनचे त्यांचेच लोन मुद्रामध्ये कन्वर्ट करून ते टार्गेट प्रेझेंटेशन केलं. आणि या गोष्टी आम्ही गव्हर्नमेंटच्या निदर्शनात आणून दिलेल्या आहेत. तेव्हा आता गव्हर्नमेंटला मुद्रा लोन रिलीज करावं लागेल. आणि आपण आता या स्टेट लेवलची कमिटी आहेच, पण जिल्हा स्तरावरच्या कमिटीमध्ये सुद्धा अगदीच कोणाला इच्छा तुम्ही डायरेक्ट कलेक्टरकडे कंप्लेंट करा. कलेक्टरांच्या अंडर बँकिंगची जिल्ह्याची कमिटी आहे, तुम्ही माझ्याकडे कंप्लेंट करू शकता, चेंबरकडे पाठवू शकता, आपण तेही पुढे फॉलो करू त्याला. तुम्ही इमिजिएट कलेक्टरकडे जरी केली तरी त्यांना आता थोडस कोविडच्या मध्ये कलेक्टर सगळे बिझी आहेत, तेव्हा आता ते लक्ष देऊ शकतील का नाही मला सांगता येणार नाही, परंतु ते ऍड्रेस होऊ शकते तुमची कंप्लेंट. मुद्रामध्ये हा सगळ्यांनी बेनिफिट घेतला पाहिजे. त्याची सुद्धा लिमिट 25 लाख करण्याची मागणी मी केलेली आहे. 10 लाखाची इंटरेस्ट रेट त्यांचा 8% पर्यंत करावा अशी डिमांड केली. आता किती ते मंजूर करतात आज नाही सांगू शकत, पण डिमांड केली आहे. एक प्रश्न होता, एक स्पेसिफिक प्रश्न आहे, एक स्पेसिफिक प्रश्न आहे, पर्टिक्युलरली अगेन मायक्रो SME करता, की ज्याचा टर्नओव्हरच समजा बिलो 10 लाख 5 लाख ज्यांनी सुरू केलेलं आहे आता, आणि 5-7 लाखाच्या टर्नओव्हरला तो पोहोचलाय 2 वर्षापूर्वीच, तर तशा व्यक्तीला काय व्हॉट आर द अव्हेन्यूज अवेलेबल फॉर हिम? त्याला जीएसटी मध्ये एक्झम्पशनच आहे ना. लिक्विडिटी करता काय आहे त्याला ऑप्शन्स? मुद्रा लोन आहे किंवा नॉर्मल बँक त्याला लोन देणार, टर्म लोन देणार. त्या नॉर्मल जे अवेलेबल आहेत त्याला अवेलेबल आहे. ओके ओके. बऱ्याच वेळेला काय होतंय, नॉर्मली बँकवाले काही ठिकाणी रिजिस्ट करतात कशाला झंझट अनोळखी माणसाचं, पण त्यांचं काम आहे थोडस आपण प्रेशर करून लोकल ऑर्गनायझेशनशी आपण अटॅच असलं पाहिजे. लोकल चेंबर असेल, लोकल व्यापारी असोसिएशन असेल किंवा स्टेट लेवलचं चेंबर असेल, कुठल्याही ऑर्गनायझेशनशी आपण अटॅच असलो तर हे इश्यू येत नाही. आता इंडिव्हिज्युअल लोकांना बऱ्याच वेळेला बँका इग्नोर करतात किंवा ते लोकल त्या डाऊन द लाईन त्या लोकांची मेंटॅलिटीचा इश्यू आहे. अदरवाईज आता बँकांच्याकडे प्रचंड पैसे सरप्लस पडून आहेत लोन देण्यासाठी. दिस इज द राईट टाइम टू अवेल द लोन फॉर जेन्युइन प्रोजेक्ट. ललितजी एक प्रश्न विचारू शकतो का? एक प्रश्न आहे मला. राजेंद्रजी एक प्रश्न विचारू का? CGT MSC साठी ज्या वेळेला आम्ही बँकांना अप्रोच करतो तेव्हा कुठलीही बँक आम्हाला त्याचा पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स देत नाही. ते दरवेळेला काहीतरी कोलॅटरल सिक्युरिटी मागतात किंवा ते रिलक्टंट असतात. तर आणि प्रत्येक बँकांच्या पॉलिसी ते वेगवेगळ्या ऐकायला मिळतात. म्हणजे वरती जो टॉप ऑफ इंटरेस्ट सर्व्हिस सेक्टर पुणे. मी थोडस तुम्ही त्या बँकेच्या हायर ऑथॉरिटीला जर भेटला, तुम्ही ज्यांच्यापर्यंत जाता त्याच्या नेक्स्ट ऑथॉरिटीला भेटा. गांधी साहेब, इथे 1 मिनिट मी पिक्चर मध्ये येईल. आता आपण ह्यांचा जो प्रश्न आहे ना हा आपण लेटेस्ट स्टेज मध्ये घेऊ. मिस्टर दत्तरदार सर हॅज जॉईन्ड. I think he has finished his call to Delhi office. Yes. And let's welcome Mr. Abhay Daftardar in chat box. Let's give him a big welcome. So I want to see everyone welcoming in chat box. Yes. Daftardar sir, welcome. Can we have Mr. Daftardar on screen with photograph with his face? I mean, sir, put on your video, please.
I think I'm audio to everyone. Yes, yes. Good evening, Gandhi sir. Namaskar. गांधी सर तुमचा व्हिडिओ ऑन ठेवा, ऑडिओ ऑन ठेवा. Yes, yes. Namaskar. Gandhi Namaskar. sir, namaskar, namaskar. Thank you, Dr. Rajendra Biniwale. Thank you so much. Good evening, everyone. And I'm really, delighted to join you all. Mr. Rajendra Biniwale, invited me to this webinar, and he wanted me to, address few of the issues of service enterprises. Okay. पण सर दत्तदास सर त्याआधी मी 1 मिनिट घेईल आपला. I want to introduce myself to Mr. दत्तदास सर first. कारण दत्तदास सरांचं जे काम आहे ते कामच बोलतं आणि त्यामुळे मी त्यांना सरळ एंट्री करू देणार नाही वेबिनार मध्ये, बिकॉज आय हॅव सीन हिज वर्क इन द फील्ड. गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन मध्ये प्रायव्हेट सेक्टरची जी पॅशन असते ती पॅशन घेऊन चालणारा जर मी व्यक्तिमत्व बघितलं असेल तर ते व्यक्तिमत्व म्हणजे मिस्टर दत्तदारांचं आहे. दत्तदार सर हे मेकॅनिकल इंजिनियर आहेत आणि क्लस्टर डेव्हलपमेंट हा जो पार्ट आहे SMEs आणि MSMEs करता त्यांचं काम खूप मोठं आहे. क्लस्टर डेव्हलपमेंट मध्ये एखादा क्लस्टर डेव्हलप करायचा असेल तर 100-200 एंटरप्रेन्युअर्सला एका प्लॅटफॉर्मवर आणणं, त्यांची ती सगळ्यांची नाळ जुळवणं, त्या सगळ्यांना एका उद्देशाकडे घेऊन जाणं आणि त्या सगळ्यांना तो प्रगतीचा मार्ग चालायला लावून प्रगती झालेली दाखवणं, हे एक फार मोठं काम आहे. आणि त्यांचं काम हॅट्स अप टू दॅट काम जे ते करतात आहे. मला सांगायला आवडेल की त्यांनी आतापर्यंत 15 अशी क्लस्टर्स डेव्हलप केलेली आहेत आणि 94 मिनी क्लस्टर डेव्हलप केलेली आहे. त्यांचं हे जे नॉलेज आहे हे नॉलेज त्यांच्या इंटरनॅशनल जे एक्सपोजर त्यांनी मिळवलं त्यामधने त्यांनी ते गेन केलं आणि भारतातल्या आपल्या SMEs MSMEs करता एक्झिक्यूट केलं. त्यांचं मला एक चांगलं उदाहरण सांगायला आवडेल की मुंबईमधलं जे टॉय मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर आहे जिथे खेळणी बनवली जातात, त्यांनी भारतातल्या क्लस्टरला चायनामध्ये घेऊन गेले, हाँगकाँगमध्ये घेऊन गेले, हाँगकाँगमध्ये घेऊन गेले आणि तिथे इंडियन टॉईज शोकेस केले. यांची स्ट्रेंथ त्यांनी तिथे शोकेस केली. सो हॅट्स अप टू यू दत्तदास साहेब. मी जास्त वेळ तुमचा घेणार नाही, पण मला एक सांगायला आवडेल परत की सर जेव्हा जपानला गेले होते सेम क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा अभ्यास करण्यासाठी, जापनीज SMEsचा त्यांनी अभ्यास करून जी काही क्लस्टर्स इथे डेव्हलप केली, तुम्ही कोल्हापूर, सातारा, मुंबई कुठल्याही MSME सेक्टर MSME डिस्ट्रिक्टला जा, सेंटरला जा, दत्तदार सरांचं नाव माहित नाही असा एखादा व्यक्ती असू शकेल. आणि लास्ट त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा एक पैलू सांगेल आणि मग आय विल रिक्वेस्ट दत्तदार सर टू गाईड ऑल द सर्व्हिस सेक्टर्स, ट्रेडर्स कम्युनिटी विच इज हिअर, की ते लोक MSME मध्ये कसे येऊ शकतात, काय गव्हर्नमेंटच्या स्कीम्स आहेत किंवा काय फॉर्मॅलिटीज आहेत हे त्यांनी आम्हा सगळ्यांना सांगावं. आणि मग काही प्रश्न तर येतीलच, पण जो मला इन्सिडेंट सांगायचा आहे तो मला सांगायला आवडेल. साताऱ्यामध्ये सातारा मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन आहे, सगळ्यांना माहिती असेल. सातारा मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन मध्ये माने नावाचे गृहस्थ कंप्लीट त्यांनी जवळपास 15 वर्षाचं त्यांचं लाईफ SME MSME करता कामामध्ये दिलेलं आहे. आणि दत्तदास सरां त्यांचा कामाचा झपाटा तर माहितीच आहे, पण असा एक साधा व्यक्ती जो सातारा मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनच्या ऑफिसमध्ये सर्व्हिसला आहे, त्याच्या कामाची पद्धत बघून सरांचं जे एक पर्सनल टच ज्याला म्हणता येईल, सर कुठेतरी कोल्हापूरच्या भागामध्ये खेड्यात त्या मुलाचं लग्न होतंय आणि सर स्वतः काम धाम थोडस बाजूला ठेवून स्वतः त्या लग्नाला जातात, त्याला आशीर्वाद देतात आणि तो जो काम करतोय त्या कामाला प्रोत्साहन देतात. सो हॅट्स अप टू यू दत्तदास सर. पण नाव आय विल नॉट टेक मच टाइम. मला असं वाटलं की काही इन्सिडेंट्स हे सांगावेत कारण तुमचं व्यक्तिमत्व अनुभवलंय मी फील्डमध्ये. थँक्यू. नाव ओव्हर टू यू दत्तदास सर. थँक्यू. थँक्यू.
Respected Lalit Gandhi Sahib, namaskar. Karan Gandhi नमस्कार नमस्कार सर. आणि thank you so much Rajendra Binewale sir for your kind words, and you have really appreciated a little contribution to from my side to industry, micro, small, medium enterprises. Anyways, you being a very versatile personality, डॉक्टर राजेंद्र बिनेवाले. डॉक्टर साहेब, मी तुमच्यासाठी आज हे इन्व्हिटेशन स्वीकारलंय आणि खरोखर I am delighted to interacting with you all. So in presence of Mr. Lalit Gandhi, and he must have guided you all. So I think my responsibility is now. I think he must have shouldered much of my responsibility. Not much, some. You can say some of your responsibility. So because I know he is very conversant with most of the government schemes, and anyways, in the wake of COVID-19, it is it is something. What am I to say? I'm not. You must have heard ministers. You must have been hearing to many of the very eminent and renowned personalities, and this is something a challenge to industry. When we were moving at the speed of 100 and the vehicle is stopped suddenly. So if it is stopped, what is going to happen? It's not the same acceleration is going to come down to zero, and then it is definitely going to skid. So like that it has happened. So entire demand supply chain from global to local is disturbed. So in this era, first of all, bringing everything to normalcy is something, a big challenge before all manufacturing enterprises. So bringing it to normalcy, I think some revival measures have to be, undertaken by manufacturing enterprises themselves, because in India, we have a strength of we have recognized manufacturing sector, and we have recognized manufacturing sector next to agriculture sector as a priority sector. So being a priority sector in India, we have enough strengths to showcase to the world that we have manufacturing capabilities. But to bring to this manufacturing, as far as normalcy is concerned or revival is concerned, as because economy is going to be again a big challenge, because pandemic is a big challenge. We are dealing with it. We have had enough of lockdown, and everyone says now that we need to deal with, we have to get along with this COVID-19 and come back to, come back to normalcy. And we need to certainly observe certain things by Ayush Ministry or Health Ministry, and we need to again start our manufacturing activities. So as far as sir, request करेल, if you can use Hindi, Marathi, कारण audience ला comfortable राहील जा. Oh, sorry. कारण याच्यामध्ये सगळ्यात मोठं बिझनेस रिवायवल हा फार मोठा सगळ्यांसमोर असणारा चॅलेंज आहे. आणि जोपर्यंत मॅन्युफॅक्चरिंग आपल्याकडे आपण रिवाईव्ह करत नाही, मी त्याला आता कसं म्हणेन की पूर्वी आम्ही जेव्हा म्हणायचो इन द मंथ ऑफ जानेवारी फेब्रुवारी, पण आम्ही इंडस्ट्री 4.0, IoT, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स याच्या स्कीम्सच्या वर आम्ही अभ्यास करत होतो. बऱ्यापैकी गांधी साहेबांना याची कल्पना आहे की ऍक्च्युली आमच्या लीन क्लस्टर्स नंतर आम्ही आता पुढे जाऊन IoT वर अभ्यास सुरू केला होता. स्कीम्स रिलेटेड टू 4.0 कशी घेऊन यायची, IoT मध्ये किती सॉफ्टवेअर हार्डवेअर असेल आणि ती मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर्सना आपल्याला हे करता येईल का, रिएम्बर्समेंट स्कीम करता येईल का, वगैरे वगैरे. म्हणजे एक थोडंसं आपण मॅन्युफॅक्चरिंगच्या डेटा मॅनेजमेंट किंवा वर्कप्लेस मॅनेजमेंट, एक स्टेट ऑफ आर्ट मॅन्युफॅक्चरिंग सेटअप
कडून घेऊन एक रिअल टाइम मॉनिटरिंग ओईएमनी करावं अशा याच्यापर्यंत आपण चाललो होतो. इन द प्रोसेस काय होतं की ह्या सगळ्या याच्यामध्ये एक ऑल द स्टेक होल्डर्स, मॅन्युफॅक्चरिंग हा इकॉनॉमी किंवा आपला MSME सेक्टर आपण का बॅकबोन म्हणतोय, कारण याच्या बॅकवर्ड लिंकेजेस आणि फॉरवर्ड लिंकेजेस मध्ये खूप इंटिग्रेटेड आपल्याला इंटिग्रेटेड अप्रोच आपल्याला बघायला मिळतो. जसं बॅकवर्ड लिंकेजेस मध्ये आपल्याला ट्रेडर्स पासून रॉ मटेरियल सप्लायर्स पासून Abhay sir, can you speak in Hindi because I don't understand Marathi and most of the people in the group do not understand Marathi. Hindi or English will do. Sorry. Anyways, I think Hindi is common to all. तो हिंदी सब समझ सकते हैं. हिंदी मेरी थोड़ी कमजोर है, आप समझ लीजिएगा. हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर. डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा. और तो ये बिजनेस रिवाइवल इज समथिंग, यू नो, ये हमारे सामने जो एक बड़ा टास्क है. इसके लिए हमने थोड़ा सा इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो हमने देखा कि जब तक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस की एक्टिविटीज नॉर्मल सी पर नहीं लेकर आते तो उसमें हमें बाकी ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस के लिए और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए सोचना थोड़ा सा ये होगा. अभी हम एक सप्लाई चेन, डिमांड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए चैलेंजेस क्या है MSMEs के लिए, इसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे. अभी ये राइजिंग टू सप्लाई चेन चैलेंजेस कॉन्सिक्वेंट टू कोविड-19 ग्लोबल आउटब्रेक, इसके लिए हम बना रहे थे. अब इसमें समझ में आ रहा है कि आप लोग ज्यादातर, बिनी वाले साहब ने मुझे बताया कि आप ट्रेडर्स भी हैं, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, सर्विस एंटरप्राइजेस और ट्रेडर कम्युनिटी, आज की तारीख में ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़े हुए हैं, ये आने वाले समय में इनको एक साथ प्रयास करने होंगे, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं. क्योंकि अगर RM में, मतलब रॉ मटेरियल में डिलेज हो जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो है वो बिगड़ जाएगी. तो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. बिनी वाले साहब के साथ मेरी चर्चा हो रही थी, तब मैं आने वाले समय में ट्रेडर्स कम्युनिटी जो भी है, जो आज तक ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, हम लोग आज तक वी हैव हैड इनफ एक्सपोजर टू ट्रेडिंग एक्टिविटी किस प्रकार से चलती है इंडिया में, हमने देखा है, बहुत नजदीक से देखा है. लेकिन जब MSMED एक्ट आया था 2006 में, तब ये 2006 में इसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइजेस बनाए थे. अब ये सर्विस एंटरप्राइजेस क्यों बनाए थे? इंडस्ट्री वर्ल्ड हमने स्क्रैप किया था, क्योंकि इंडस्ट्री में हम लोग जितनी ऑपरेशंस को इंक्लूड करके चल रहे थे, 2000 मतलब 2K के बाद हमारे पास जो सर्विस एंटरप्राइजेस IT की वजह से जो बूम आई, जिसमें हमारे कॉल सेंटर्स, जिसमें हमारे BPOs, जिसमें हमारे KPOs, इस प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर्स बहुत आ गए, और सर्विस एंटरप्राइजेस को कुछ ना कुछ स्कीम्स या उनको एक्सपोजर देने की, या उनको भी कुछ हद तक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस की सपोर्ट सिस्टम के तौर पर देखने की जरूरत थी. इसलिए सर्विस एंटरप्राइजेस को मिलाकर ये मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट बनाया गया. अब मैं चाहता हूं कि ये जो ट्रेडर्स हैं, ये ट्रेडर्स, दे बीइंग अ वेरी 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 इसेंशियल पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, व्हाई कांट दे बिकम सर्विस प्रोवाइडर्स? बिनी वाले साहब के साथ मेरी ये चर्चा हो रही थी कि एक ट्रेडिंग एक्टिविटी करने वाले जो भी कोई है, वो थोड़ा सा अपने आप को सर्विस प्रोवाइडर या सप्लायर की तो सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर क्यों नहीं अलाइन कर पा रहे, ताकि वो MSMED एक्ट में आ जाए. और वो MSMED एक्ट में आ जाएंगे तब वो सारी सुविधाएं जो MSME की है वो ले पाएंगे. इसमें अगर क्या दिक्कत है आपको, कि अगर आप तो किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसको अलाइन एक सर्विस आपके पास इक्विप्ड करना मेरे ख्याल से बहुत कठिन नहीं होगा. तो आप सर्विसेज में आ जाएंगे तो MSME की सारी सुविधाएं जो है वो आपको मिल सकती है. मेरे ख्याल से
ट्रेडिंग एक्टिविटी को अभी सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि ट्रेडर्स आर एक्सपोज टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड इफ अगर हमारे पास आज हम बात कर रहे हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया जाए, इंपोर्ट कम किया जाए, एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो हमारे पास इंपोर्ट को डीमोटिवेट करना है, हमारे पास हम एक्सपोर्ट के लिए अगर जाना है तो मेरे ख्याल से ट्रेडर्स को सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर आगे आने की बहुत जरूरत है. If at this point of time, if anybody has any question, please ask me, because let it be interactive, because I have much of stuff. मेरे पास बहुत कुछ रिवाइवल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी है, रिवाइवल सूत्रास मैंने बनाए हैं, मेरे पास एक डिमांड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए भी है, मेरे पास एमएसएमई की स्कीम्स. लेकिन आज की तारीख में अगर मैं स्कीम्स की बात करूं तो शायद आप ये कहेंगे कि स्कीम्स लेने के लिए मुझे अब नॉर्मल तो आने की जरूरत है. मैं स्ट्रेटेजी कब बनाऊंगा? स्ट्रेटेजी कब मैं बनाऊंगा? जब मैं नॉर्मल मेरे डे टू डे अफेयर्स आ जाएंगे तब मैं कोई स्ट्रेटेजी बनाऊंगा. इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस पूछें, तो ताकि, क्योंकि आपके क्रेडिट रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, शायद आपके बहुत सारे क्वेश्चंस वर्किंग कैपिटल रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट आजकल, अभी मेरे ख्याल से गांधी साहब के साथ आप वही बात कर रहे थे. Questions? I will request here everyone, you can put your questions in chat box. The chat box is open. Please put your questions in chat box, and we will have them asked to Dr. Das sir. Fine. मेरे ख्याल से स्वप्निल जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं राजेंद्र जी. स्वप्निल शाह. स्वप्निल जी प्लीज पूछिए आप. जी नमस्कार अभय जी. नमस्कार. मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सेक्रेटरी और वीटीपी एसोसिएशन जो स्किल डेवलपमेंट में काम करती है उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए काम करता हूँ. सर जी सर, अभी हमारा प्रॉब्लम यह है कि स्किल जो देने वाली इंस्टीट्यूट्स है उनको एमएसएमई में अगर आना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप अभी ट्रेडिंग की जो बात कर रहे हो तो यहाँ काफी सारे पार्टिसिपेंट्स एजुकेशन रिलेटेड है, कुछ लोगों की स्कूल भी है, वो स्कूल भी यहाँ पे चलाते हैं, और ट्रस्ट अगर जिनका है और ट्रस्ट को भी एमएसएमई में आना हो, अगर ट्रस्ट स्कूल चला हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? और स्किल इंडस्ट्री को भी अभी स्किल ट्रेनिंग की जरूरत है. मतलब एमएसएमई के जितने भी सेक्टर है, आप तो जानते हो कि कौशल्य भारत, कुशल भारत प्रधानमंत्री का सपना है, और कुशल भारत के लिए स्किल ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो इस ट्रेनिंग सेक्टर में छोटे छोटे जो ट्रेनिंग सेंटर्स है उनको अगर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करना हो तो क्या करना पड़ेगा और किस तरह से कर सकते हैं? क्योंकि अभी जो आपका क्लॉज है 8549 उसमें एमएसएमई में जो सेंटर्स है उसमें हमारे स्किल सेंटर्स कहीं आते नहीं है. ओके, प्लीज गाइड अस. ये जो आपने एक बहुत अच्छी बात पूछी है कि आपका एजुकेशन, देखिए यू आर इनटू इम्पार्टिंग स्किल, बराबर है. आप एक एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड इनपुट्स एंड स्किल रिलेटेड, जिसको हम सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल्स कहते हैं. तो सॉफ्ट स्किल्स में आप हो, मतलब एंटरप्रेन्योरल या मैनेजरियल इनपुट्स आप दे रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हो. अगर आपको रजिस्टर करना है तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जो होते हैं एनएसडीसी डेवलपमेंट, उसका आपने रजिस्ट्रेशन किया है क्या? नहीं, ऐसा है कि इसमें बहुत सारी योजना है. एनएसडीसी के सेंटर जो अलग है, महाराष्ट्र स्टेट स्किल डेवलपमेंट सेंटर अलग है, फिर एनयूएलएम अलग है, फिर स्मार्ट पोर्टल अलग है. इतने सारे जगह पे एक सेंटर, लगभग 5-5 जगह एक सेंटर को गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोल रही है, और वो पॉसिबल नहीं हो रहा है. किस सेंटर को कहाँ जाना है, कहाँ स्पेशलाइज्ड सेंटर करना है. अगर मान लो एनएसडीसी के सेंटर रजिस्टर है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं देती, स्टेट में रजिस्टर है तो उसको सेंटर काम नहीं देती. ये बहुत सारे उसमें कंफ्यूजन है सर. मैं चाहूंगा कि आपको पर्सनल तौर पर मैं एक सलाह देना चाहूंगा, इन माय पर्सनल कैपेसिटी. इफ योर इंस्टीट्यूट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर सर्टन, आपके पास अगर कोई कोर्स मॉड्यूल है जो कि आपने जिसको आपने किसी संस्था का एफिलिएशन लेकर रिकॉग्नाइज करके लिया है, या महाराष्ट्र स्टेट टेक्निकल बोर्ड का आपके पास एफिलिएशन है, तो मिनिस्ट्री, हमारी भी मिनिस्ट्री बहुत सारा स्किल डेवलपमेंट करने जा रही है पोस्ट कोविड. तो अगर आपके पास आपके क्रेडेंशियल्स हमारी स्कीम में बैठते हैं
So we will definitely get associated with you to conduct the program. We will not give it to you because the responsibility of the ministry is to understand the outcome of the program. तो अगर आपके credentials हमारी कोर्स मॉड्यूल जो 30 डेज का है जिसमें 10 डेज हम सॉफ्ट स्किल्स देते हैं और 20 डेज प्रैक्टिकल सेशंस जिसमें हैंड होल्डिंग होता है, तो आपके पास किस प्रकार का हैंड होल्डिंग आप कर रहे हो इसकी अगर मिलती है तो, लेकिन हमारा जो क्वांटम है बहुत कम है। मैं समझता हूं कि आपको हमारी जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ आप ऐसा कीजिए, आप डॉक्टर राजेंद्र बीनीवाले साहब के पास से मेरा नंबर लीजिए, आप मुझे या मेरा ईमेल है तो या तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप आपका इंट्रोडक्शन भेज दीजिए। वेयर आर यू लोकेटेड? जी, आई एम लोकेटेड इन सांगली सर। हेलो, सॉरी, सांगली सर। ओके, यू आर लोकेटेड इन सांगली, सो ओके, सो आप ऐसा कीजिए, आप मेरे पास भेज दीजिए एंड आई विल सी टू इट दैट कि मैं दूसरे जहां भी हमारे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे भी आपको कनेक्ट कर दूंगा। आपको उसके लिए उद्योग आधार की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए। हेलो सर, एक प्रश्न आहे, तुम्ही विचारताय काही प्रश्न? मी विचारतो प्लीज सर, प्लीज। सर, आमची ऑर्गनायझेशन जे आहे पुणा इलेक्ट्रॉनिक असोसिएशन जे आहे त्याच्यामध्ये 3 प्रकारचे हे आहेत, प्युअरली ट्रेडर्स आहे, काही ट्रेडर्स प्लस सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स आहेत। तर आता जे सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स आहेत त्यांनी MSME अंडर रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे, पण जे प्युअरली ट्रेडर्स आहेत त्यांना ते करता येत नाही। तर मला बेसिक प्रश्न असा आहे की जे ट्रेडर्स आहेत, जी एक इम्पॉर्टंट लिंक आहे या सगळ्या सिस्टीम मध्ये, त्यांना MSME मध्ये घ्यायला काय प्रॉब्लेम आहे, त्यांना का घेतलं जात नाही MSME मध्ये? एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो, तुमच्या असोसिएशनचं नाव आता मराठीत बोलू का ह्या प्रश्न? चालेल। पुणा इलेक्ट्रिक अँड इलेक्ट्रॉनिक असोसिएशन। पुणा इलेक्ट्रिक अँड इलेक्ट्रॉनिक असोसिएशन। आता तुम्ही पुणे इलेक्ट्रिक आणि इलेक्ट्रॉनिक असोसिएशन मध्ये आहात म्हणून तुम्हाला याची कल्पना असेलच। आपल्या भारताचं ऍज अ एक्सचेकर इलेक्ट्रॉनिक्स इम्पोर्ट बिल हे ऑइल इम्पोर्ट बिल पेक्षा जास्त आहे। तुम्ही तैवान सारखा एक देश जो त्या डोमेन मध्ये एक्सप्लॉइट करतो इवन भारतासारख्या मोठ्या देशाला, बरोबर आहे। गोष्ट सांगायची काय आहे की वी आर इम्पोर्टिंग, आणि ती वेल नोन फॅक्ट आहे, इट इज नॉट न्यू टू मी और नोन टू मी ओनली, और हे फक्त तुम्हाला मला माहिती असं नाही, हे सगळं माहिती। गोष्ट काय आहे की वेन वी आर इम्पोर्टिंग टू द ट्यून ऑफ सो मेनी बिलियन डॉलर्स, तुम्ही प्रत्येक गोष्टीच्या ट्रेडिंग मध्ये त्या ऍक्टिव्हिटीला अलाइंड अशी सर्व्हिस प्रोव्हाइड करण्याचं तंत्र विकसित करण्याचं तुमच्या असोसिएशन मध्ये काही एक्सपर्टीज ना बोलून, आणि त्याच्यासाठी जर का तुम्ही मला नंतर कॉन्टॅक्ट केला तर आय कॅन सजेस्ट यू द वे आउट फॉर मेनी ऑफ यू टू गेट इनटू दिस सर्व्हिस एंटरप्राइज कॅटेगरी। कारण येणाऱ्या कालावधीमध्ये भारत सरकार मॅन्युफॅक्चरिंग कॅपॅबिलिटीज ज्या इन्क्रीज करू पाहते किंवा ज्या FDI आता 76% पर्यंत आपण आणले, गांधी साहेब आता ऍग्री करतील की आता आपण बऱ्यापैकी इवन याच्यामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये 100% FDI आणले, 76% आपण डिफेन्स आणि याच्यामध्ये आणले। समजा वेन आय एम गोइंग टू मॅन्युफॅक्चर मी रशियन चॉपर, so Russians are not going to set up a manufacturing plant here in India. We are going to set up a manufacturing plant in India. Required आम्हाला जे इलेक्ट्रॉनिक्स त्याचं लागणार आहे, इलेक्ट्रिकल लागणार आहे, त्याच्या कॅपॅबिलिटीज आपल्या इंडियन काउंटर पार्ट मध्ये जेवीस किंवा टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशननी होणार आहे, टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफरनी होणार आहे। आणि ह्या टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर मध्ये तुमच्यासारखे इलेक्ट्रिकल किंवा इलेक्ट्रॉनिक हे आम्हाला खूप चांगली सर्व्हिसेस देऊ शकतात, प्रोव्हाइडेड you should be able to, or your capabilities should be they should find your capabilities to transfer the technology to you. याच्यामध्ये आपल्याला काम करण्याची गरज आहे। बिनीवाले साहेब यांना पण तुम्ही माझा नंबर द्या। येस आणि मी साहेब तुमचं नाव काय म्हणालात? विपिन शेठ। विपिन शेठ। शेठ साहेब आपण परत एकदा बोलूया, कारण मेनी ऑफ द ट्रेडर्स कॅन नाउ बिकम सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स
and then they can register themselves as a service enterprise in MSMED Act. ओके. अभय सर, एक प्रश्न आहे माझ्याकडे आलेला. तो प्रश्न असा आहे की देर इज अ जेंटलमन ज्यांचं रजिस्ट्रेशन MSME म्हणून झालेलं आहे आणि त्यांचे काही क्लायंट्सकडे सर्टन अमाऊंट्स पेंडिंग आहेत, राहिलेले आहेत, पण ही इज इनटू ट्रेडिंग इनफॅक्ट. अच्छा, तोच प्रॉब्लेम होता ऍक्च्युली ट्रेडर्स करता हा तो कसं काय त्याला उद्योग आधार मध्ये रजिस्टर नसल्यामुळे त्याला समाधान पोर्टलवर जाता येत नाही आणि समाधान पोर्टलवर त्याला म्हणजे आमची जी क्वासी ज्युडिशियल अथॉरिटी आम्ही जॉईंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज ना दिलेली आहे गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राला, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानी, ज्याच्याद्वारे नोटीस काढता येते. ऍक्च्युली इथे सुद्धा ट्रेडर्सना मला वाटतं ही खूप मोठे लिमिटेशन्स येतात की मोठे कस्टमर्स त्यांचं सप्लाय दिले नाहीत पण त्यांना 45 डेजचा हा डिलेड पेमेंट ऍक्ट लागू होत नाही. बरोबर आहे? बरोबर आहे. तर याच्याच करता मी नेहमी म्हणतो की ट्रेडरनी कोणती तरी ऍक्टिव्हिटी त्याच्यामध्ये त्याच्याशी रिलेटेड, इवन मी तर म्हणतो की रॉ मटेरियल एखादा समजा तुम्ही ब्राईट बार सप्लाय करता, आता तुमच्यापैकी इथे किती ट्रेडर्स अशा संबंधित असतील माहिती नाही, किंवा गांधी साहेब आता सगळ्याच विषयाशी परिचित आहेत. तर रॉ मटेरियल सप्लाय करणारा, स्टील सप्लाय करणारा, ब्राईट बार सप्लाय करणारा असेल आणि तो SS 316 सप्लाय करणारा असेल, काय असेल, मला असं वाटतं त्याच्याकडे साधे फास्नर्स करणाऱ्यांपासून ते त्याच्याकडे स्टील रोलिंग करणाऱ्यापर्यंत सगळेजण येतात. त्याच्यातली एक ऍक्टिव्हिटी ज्याच्यामध्ये फक्त त्याला लागतंय की त्याचं ब्राईट बॅट कट करण्याची बँडसॉ लागतीये, हॅक्सॉ लागतीये आणि ती हॅक्सॉ आहे, त्याच्यानंतर काही ऑपरेशन्स आहेत. असं करून जर का तो सर्व्हिस प्रोव्हायडर म्हणून व्हॅल्यू ऍडिशन म्हणून मॅन्युफॅक्चरिंगला सर्व्हिसेस आणि रॉ मटेरियल प्रोव्हाइड एकत्र केलं तर तो ह्या याच्यात बसतो. मला जरा यामध्ये बोलायचं होतं. हाँ, अभय जी हमें एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहे हैं. मतलब एक वो ना, इंडियन इज नोन फॉर जुगाड़ फंडा, तो हमें इसमें से वे आउट निकाल कर आगे जाने का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन उन्होंने दिखाया है. ये एक बात है. एक्चुअली MSME में ट्रेडर इनिशियली कवर थे. 2017 के एक नोटिफिकेशन से ट्रेडर को उसमें से स्पेसिफिकली डिलीट किया गया. तो अभी हमारी परसों जब नितिन जी के साथ मीटिंग हुई तो हमने उनको बताया कि आपने 2017 में, मतलब ये बहुत कोई पुरानी बात नहीं है, रिसेंटली डिलीट किया है, तो हमें एक बार वापस इसके अंदर ऐड करिए ऑफिशियली, तो ये हमें कोई और उसके अंदर शॉर्टकट लेने की जरूरत रहनी नहीं पड़े. तो कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी वाला उसे MSME एज ए एंटरप्रेन्योर कैटेगरी में नॉर्मल डेफिनेशन में जो आएगा उसे आप ऐड करिए. तो उन्होंने एक पॉजिटिव कमिटमेंट किया है कि जब भी जो दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली जाने के 2 दिन के अंदर इसके ऊपर जो भी पॉसिबल होगा वो डिसीजन देंगे. ये 3 लाख करोड़ का पैकेज में जो इनिशियली सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस जो MSME के रजिस्टर्ड यूनिट के लिए था, उसमें नितिन जी और अनुराग ठाकुर जी के प्रयासों से ये 4-5 दिन की डेवलपमेंट है. अपनी बिजनेस मन को उन्होंने ऐड किया कि अगर वो MSME के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो भी उसको इस स्कीम का बेनिफिट देंगे. तो उसका एक फर्स्ट स्टेप हम बोल सकते हैं कि हो सकता है अगले स्टेप में हमें वो ऑफिशियली इंक्लूड करे. अगर हमें कुछ हेल्प लगेगा, अभय जी का हेल्प लेने का अपन प्रयास करेंगे उसके अंदर. ललित गांधी साहेब, थँक्यू. अभय जी, एक प्रश्न आलाय माझ्याकडे. तो प्रश्न असा आहे, तुम्ही काहीतरी बोलत होतात पण गांधी साहेबांनी आता बरोबर सांगितलं, कारण नितीनजी ऑनरेबल मिनिस्टर साहेबांच्या त्यांच्या मीटिंग नंतर हा खरोखर 2017 पर्यंत काही ट्रेडर्स पण आपण त्याच्यात हे करत होतो. पण मी तुम्हाला मैं अभी भी आप सभी को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि ट्रेडर अगर सर्विस प्रोवाइडर होता है तो उसमें और एक एडवांटेज उसके लिए ये है कि वो गवर्नमेंट ई-मार्केटिंग पोर्टल पर आ जाएगा. यू कैन गेट एंड यू कैन रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस. आज आपका दायरा अगर पिंपरी चिंचवड़, भोसरी या शिरोली, कोल्हापुर है तो वो आपका ऑल इंडिया बन जाएगा. You will receive orders from not only pan Maharashtra but pan India also. The thing is that आपके सर्विस एंटरप्राइज बनने का एडवांटेज आपको गवर्नमेंट ई-मार्केटिंग पर आएगा. और अभी जैसे गांधी साहब ने बताया कि एक फर्स्ट स्टेप ली गई है जिसमें कि रिटेलर्स और स्मॉल बिजनेसेस, दोज हु आर नॉट रजिस्टर्ड एज MSME, they are also eligible for emergency credit.
ये जो अभी 3 लाख का पैकेज जो है, जो गांधी साहब ने बताया, इसमें ये इनको भी गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन GECL जिसको हम कह रहे हैं, उसमें दे आर ऑल्सो अलाउड. सो अगर आप किसी को उसमें बेनिफिट लेना है तो वर्किंग कैपिटल का बेनिफिट आप ले सकते हो. हाँ, काय प्रश्न होता पुढे? माझा प्रश्न तो सर्व्हिस सेक्टर संदर्भातलाच होता, जो विचारला गेला होता की स्पेसिफिक आपण जेव्हा असं म्हणतो की सर्व्हिसेस सेक्टर MSME, तर त्यांचा प्रश्न असा होता की कुठल्या सर्व्हिसेस येत नाही, म्हणजे दे कॅन अंडरस्टँड की कुठल्या येतात, असं काही आहे की ह्या सर्व्हिसेस म्हणा, किंवा दीज आर द ऑर्गनायझेशन्स, दीज आर द बिझनेसेस विच कॅन फॉल इन टू SME as a service sector. Can you elaborate? Yes. Let me elaborate it to everyone. मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ what is manufacturing unit. Sorry, what is manufacturing enterprise. यहाँ से शुरुआत करता हूँ बिनी वाले साहब, तो सबको पता चलेगा कि what I am saying. Correct. A manufacturing enterprise definition हमारी जो है, a unit manufacturing any product or commodity is a manufacturing enterprise. A unit offering its services related to this product and commodity is a service enterprise. Okay, wonderful. So आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी प्रोडक्ट कमोडिटी से जुड़ा हुआ सब कुछ, जिसमें मैंने बोला ना कि आपको BPO, KPO, कॉल सेंटर से लेकर कौन से एक्टिविटी सर्विसेज में नहीं है. सर्विसेज में आपको क्या कि आप अगर मार्केट यार्ड से शक्कर खरीद के यहाँ बेच रहे, तो मैं नहीं कहूंगा कि दैट इज अलाइड एक्टिविटी, बिकॉज उसमें वैल्यू एडिशन कुछ नहीं है. यू आर वेइंग 50 kgs in the market yard and you are selling here into a small amounts of 5 kgs or 50 grams or 100 grams. So that cannot be calculated as a service enterprise. It is a trading activity. रिटेलर के फॉर्म में आप होलसेलर के, रिटेलर के और क्या कहते हैं आप ग्रोसरी शॉप में उसको ले रहे, वो उस वैल्यू चेन में आप नहीं बन पा रहे. बट इफ एनीबडी हैज इन हाउस, अगर उसको पीठी शक्कर बनाने का उसने खुद ब्रांड निकाला, समझी, उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं, उसने रॉ मटेरियल तो एक अपनी शुगर खरीदी, लेकिन उसको उसने कुछ प्रोसेस करके कुछ उसकी शुगर की टॉपिंग्स बना के कुछ आपकी कुकीज बनाई. सो दैट इज अ सर्विस एंटरप्राइज. सो मेरे ख्याल से थोड़ी सी वैल्यू एडिशन कोई भी ट्रेडर अपनी एक्टिविटी में करता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़ी हुई है, उसको हम सर्विस एंटरप्राइज कहने जा रहे हैं, एंड दोज आर लिस्टेड. सो लिटिल वैल्यू एडिशन टू योर प्रेजेंट एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एनी रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, हम आप उसको जोड़ दीजिए, आप उसमें आ जाएंगे कि आपका उद्योग आधार भी होगा और आपका सर्विस एंटरप्राइज भी रजिस्टर होगा. Okay. So in coming days, I tell you, in coming days, the number of service enterprises is going to make a huge difference. Okay. हाँ, कुणाचा? सर एक विचारू का मी? हाँ, प्लीज सर, प्लीज. हा सर, अजून एक क्वेश्चन आमच्याकडनं असा होता की आमच्यामध्ये जे आता MSME मध्ये रजिस्टर झालेलो आहोत, तर काही कंपन्या असं कधी कधी प्रिफर करतात की जे MSME मध्ये रजिस्टर नाहीये त्यांच्याकडनं मटेरियल घ्यायला, आणि अवॉइड करतात MSME कडे रजिस्टर असलेल्या लोकांकडनं, कारण त्यांना पेमेंटचं जे सायकल आहे 45 डेजचं ते ऍक्सेप्टेबल नसतं. दे सेड आवर पेमेंट टर्म्स आर 90 days or 120 days. So if you are in MSME, we are supposed to pay you interest on that. So they don't prefer to buy material from us. No, how long they will not prefer to buy material from you? See, and what is the sort of that material? See, आता एक मिनिट इथं थोडंसं एलाबोरेट करतो अजून याच्यावरती. आता a trader and a trader with service providing facility, so he is in MSME. A pure trader is not in MSME. बरोबर आहे? One second, just let me understand it correctly. There are two categories. One are traders, and again traders with service facility. So they are into service providing sector, and they are. Hello. हाँ, सरांचा आवाज गेला वाटतं. हॅलो. हा सर, नमस्कार. हा, मला एक प्रश्न विचारायचा होता. एक मिनिट फक्त. मगाचचा प्रश्न राहिला मला.
विपिन शेठ आहात तुम्ही किंवा किशोर ओसवाल जी आप हो, यू कैन एक्सटेंड दैट क्वेश्चन जो वो पूछ रहे थे। किशोर जी आपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। हाँ विपिन शेठ असं विचारत होते की समजा आमच्याकडे दोन हिंदी कैटेगरी। हिंदी सर, हिंदी। ओके, हमारे पास दो कैटेगरी के मेंबर्स है, तो एक प्योरली ट्रेडर है और एक ट्रेडर प्लस सर्विस प्रोवाइडर है। तो उसका रजिस्ट्रेशन एमएसएमई में है और जो ट्रेडर प्योर ट्रेडर है उसका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो सप्लायर जो है वो प्रेफर ये करते हैं कि हम एमएसएमई नॉन रजिस्टर्ड मेंबर उसके पास से मटेरियल खरीदे। जो ट्रेडिंग का एक्टिविटी है वो मटेरियल दोनों के पास अवेलेबल है, लेकिन वो प्रेफर करेगा नॉन एमएसएमई के पास से लेना, क्योंकि वहां पे वो कंडीशंस उसको नहीं है, इंटरेस्ट नहीं देना है या ये सब चीजें। हाँ, देखिए इसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इसमें इस प्रकार का एक थोड़ा शॉर्ट कमिंग भी है, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर बोलकर गवर्नमेंट ई मार्केट जा रहे हो तो यही बिजनेस आप वहां कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। अच्छा, आपको मैं बता रहा हूं कि आप कितना बिजनेस कॉम्पेंसेट होता है। इन माय ऑफिस अगर मुझे अगर लुधियाना से आज मुझे स्टेशनरी मिलती है, मुझे अगर वो सर्विस एंटरप्राइज होने की वजह से गवर्नमेंट ई मार्केट पर रजिस्टर होने से मेरा यूपीएस जो है वो आज चेन्नई से आता है। तो बात कहने की है कि ये कॉम्पिटिटिव में आपका अगर थोड़ा सा यहाँ बिजनेस कोई आपका ओईएम, मेरे ख्याल से ये लोग होंगे जो ओईएम्स होंगे, बराबर है, ये प्रीफर कर रहे होंगे कि ज्यादातर जो रजिस्टर्ड नहीं है उससे हम ले लो, क्योंकि उसके पास 90 डेज नहीं मुझे 120 डेज भी मिलेगा, क्योंकि स्टॉकिस्ट के पास उतनी कैपेसिटी होती है होल्ड करने की पैसे। ओके, और वो अपने आप में वो सामान उसको दे रहा है और वो कह रहा है कि बस मुझे 90 दिन का चाहिए वो। लेकिन आप ये सोचो कि अगर आप गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पर सर्विस एंटरप्राइज बोलकर आप अगर रजिस्टर हो चुके हो तो आपको दूसरी तरफ से कितना बिजनेस आ सकता है। राइट, तो इन कमिंग डेज इट इज गोइंग टू बी, आज सिस्टम शुरू हो गई है। आज हम 15-16 की बात जब करेंगे, 14-15 की और आज 20 में बहुत फर्क है। आज इतना बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है कि हम खुद देख रहे हैं कि सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग्स के पास से, मैं समझता हूं मेरे अंडरस्टैंडिंग में और मेरी जहां तक समझ है, बिल्कुल एक जो रेगुलर कंटीजेंसीज का भी अगर रिकरिंग एक्सपेंडिचर में जो उनका खर्चा होता है उसकी प्रोक्यूरमेंट भी करो नॉट लेस देन 250 करोड़ तक की हर एक पीएसयू सीपीएसयूज की है, वो इतनी ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट ई मार्केट पे हो रही है। तो साहब आने वाले दिनों में आप इसका एडवांटेज देखिए, ना कि आप थोड़े से ओईएम जो आपके पास से नहीं ले रहे। ओके, थैंक यू। ओके, हाँ, नेक्स्ट काही क्वेश्चन? सर मगाशी, सर नमस्कार, मी स्वप्नील शाह बोलतोय पुन्हा। मगाशी आपलं थोडंसं मध्ये दुसरा प्रश्न विषय थोडासा राहिला सर। एनएसडीसी ला ज्या संस्था रजिस्टर कराव्या लागतात त्यांचे रजिस्ट्रेशन क्रायटेरिया वेगळे आहेत आणि एमएसबीव्ही म्हणजे महाराष्ट्र व्यवसाय प्रशिक्षण, म्हणजे जिथे छोटे छोटे 6 महिन्यापासून 1 वर्षाचे कोर्सेस चालतात, ज्याचं इन्फ्रास्ट्रक्चर छोटं असतं, म्हणजे 700-800 स्क्वेअर फूटचं इन्फ्रास्ट्रक्चर असतं। एनएसडीसीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरची 3000 स्क्वेअर फूटची कंडिशन आहे। तर मग अशी छोटी संस्था एमएसएमई मध्ये यायची असेल तर तशी काय प्रोव्हिजन आहे का आपल्याकडे आणि काय करता येईल? साहेब मला काय म्हणायचंय, तुमची संस्था एमएसएमई मध्ये येऊन ना, म्हणजे तुम्हाला ट्रूली स्पीकिंग सांगायचं तर मायक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ह्या डेफिनेशन मध्ये अशा प्रकारची इन्स्टिट्यूट येण्यापेक्षा तुम्ही मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट मध्ये गेलात तर तुम्हाला सांगतो, कारण उद्योग आधार घेऊन तुम्ही एमएसएमई मिळून तुम्हाला जे काही ऍडव्हान्टेज मिळणार आहेत त्याच्यापेक्षा जास्त तुम्हाला डायरेक्ट मिनिस्ट्रीत अफिलिएशन केल्याने मिळणार। कुठल्या मिनिस्ट्रीमध्ये म्हणालात सर? लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट कडे आता तुम्हाला सांगण्याची गोष्ट, आता मायग्रंट लेबर जे कमी झालेले आपल्याकडे, मायग्रंट लेबरचा जो जे आता गेलेले आहेत त्याच्या जागी त्यांना साठी खूप मोठी तयारी करायची। तर त्याच्यासाठी तुम्ही ना उद्योग आधार घेऊन मायक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज म्हणून रजिस्टर होण्यापेक्षा
तुम्ही स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट म्हणून मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट कडे रजिस्टर व्हा. नाही, त्या रजिस्टर झालेल्या संस्थांनाच MSME विषयी बोलतोय. छोट्या छोट्या संस्था तिथं झालेल्या आहेत रजिस्टर स्किल डेव्हलपमेंट खाली. आणि पण बँकेचं लोन पाहिजे असेल किंवा काही असेल तर या संस्थांना मिळत नाही, कारण त्यांच्याकडे MSMEचं किंवा इतर कुठलं काही नसतं. आणि या संस्थांना स्किल डेव्हलपमेंटच्या सर्टिफिकेट वरती बँक लोन वगैरे काही मिळत नाही. म्हणूनच मी तुम्हाला म्हटलं ना की तुमच्या स्किल डेव्हलपमेंट मध्ये हँड होल्डिंग साठी तुम्ही जर का ते इन्फ्रास्ट्रक्चर घेतलं, तुम्ही तुमच्याकडे काय होतंय, तुमच्याकडे एखादा कोर्स मॉड्यूल जो आहे तो सॉफ्ट स्किल्स आहे. आताच प्रेझेंट तुमच्याकडे हार्ड स्किल साठी काय आहे सांगा मला. नाही, माझं स्वतःचं आपण एक काम करूया सर. स्वप्नील सर, आय विल शेअर नंबर ऑफ दत्तादा सर विथ यू. राईट सर, आय नीड टू डेफिनेटली टेक इट to Mr. Dattadas sir. Yes sir, thank you so much. Before that, I'll request panelists, particularly Mr. Kishore Oswal, Bipin Sheth, Lalit Gandhi ji, because your question will be on the behalf of hundreds of people who are from a particular community. So taking into consideration time and the further commitment Mr. Abhay sir has, we'll have 2 questions coming from these panelists, particularly 3 questions rather. Kishore ji, anything you want to ask on the behalf of the members of your association? Any question you have? Yeah. We have a question. Yeah, please, sir. One of our members has mentioned that I am registered in MSME with turnover of about 6 crores. I have OD account in a private bank with limit of 1.5 crores. Can I get additional working capital from any nationalized bank which supports MSME? Yeah, definitely you will get, because as many as lending institutions you have to get the only certificate from those lending institutions. Actually, this member of lending institution list is in now they are enlisted in this emergency credit link guarantee scheme. Okay. So even you can avail the same scheme from national, but here I would like to suggest you to go ahead with any of the nationalized bank at any point of time. I think Mr. Gandhi will agree to my point, because having private banks, see, we are now talking even about NBFCs, non-banking finance corporations we are also going to deal with, because they have better connect with MSCs, no doubt about it. But I suggest आपने अगर आपके on behalf of your members अगर आपने question पूछा है, तो मेरा ये जवाब होगा कि at least as far as banking is concerned, you should have at least one account with nationalized bank. अगर आप उससे कर रहे हो, लेकिन आपकी अगर प्राइवेट भी बैंक है तो आप इनसे 2902 को अगर आपके पास आपका बैलेंस शीट एक्सपोज है और आपका वर्किंग कैपिटल या टर्म लोन है, तो यू आर एलिजिबल फॉर 20% ऑफ वर्किंग कैपिटल एडिशन. Okay, thank you, sir. Bipin sir, any question you have? Bipin Sheth sir? Lalit ji, any question on behalf of? मैं अभय जी से जस्ट बुलेट पॉइंट चाहता हूँ कि MSME registered units or non-registered units, what is the major benefit for MSME registered units apart from that samadhan or payment issue? What is other benefits for MSME which are registered as a Udyog Aadhaar system of MSME ministry? ये क्वेश्चन किसने पूछा है? ललित साहब ने पूछा है. ललित साहब ने. अच्छा. ललित सर, sir, taking into consideration today's industrial scenario or industrial advancement decade wise, if you consider after 2000, if I may allow to ask any one of you or anyone from government, we have no data. Even associations, they have no proper data that who all are there, manufacturers, who all are service providers, they have the least. But see, we have started MSME data bank. So having you registered as a Udyog Aadhaar or you are MSME registered, you can upload your data related to manufacturing or service provider as a service provider in MSME data bank, and which is going to be a phenomenon in coming years. Like government e-market portal,
today you have business all across India. Likewise, MSME Data Bank is going to bring business to your doorstep in coming years. This is the advantage. Right. Good. सर एक मगाशी विचारलेला प्रश्न परत विचारायचा होता, विचारू शकतो का राजेंद्र सर? काय म्हणतात सर? मगाशी आपला बोलणं अर्धवट राहिलं होतं, सर आले, दप्तरदार सर आले म्हणून मला त्यांना प्रश्न विचारायचा होता. CGT MSc च्या संदर्भात आपण बोललो. ओके ओके, we will do one thing. ललित सर आपला झालाय प्रश्न? झाला. Okay, so we will have this last question, Abhay sir. I will not take your much time now because it's almost, you know. No, I'm really privileged to share, you know, webinar with Lalit Gandhi saheb आणि त्यांच्या प्रश्नाचं मी satisfactorily म्हणाले, this is something a reward for me. It's my pleasure. Sir, who was asking question? मी चिंतामणी केळकर बोलतोय, पुण्याहून बोलतोय. सर साहेब विचारायचं असं होतं की आता सीसी म्हणजे नवीन फर्म जे आहेत, तुम्ही जसं म्हणलात की सर्व्हिस सेक्टर मध्ये लोकांनी एंटर केलं पाहिजे, तर सर्व्हिस सेक्टर मध्ये लोकांनी एंटर केल्यानंतर त्याच्यानंतर बँकांकडे ज्यावेळेला आम्ही जातो आणि त्यांना जेव्हा CGT MSc साठी ऍप्लिकेशन साठी बोलतो त्याला आम्हाला डिस्करेज केलं जातं आणि तुमच्याकडे काही कोलॅटरल सिक्युरिटी आहे का याच्यावरती आम्हाला जास्त स्ट्रेस दिला जातो आणि काहीतरी करून ते घुमवलं जातं आणि प्रत्येक बँकेची CGT MSc ला विचारलं तर त्यांचे स्वतःचे वेगळे नॉर्म्स आहेत ते. तर CC एखाद्या जर असेल आणि त्याला ते क्लोज करायचं असेल आणि CGT MSc जर हवं असेल तर अशा आम्हाला सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सना जर कोणी अडवत असेल तर आम्हाला तुमच्या डिपार्टमेंट कडनं काही मदत मिळू शकते का, तुम्ही किंवा सिडबी? एक गोष्ट एक लक्षात घ्या की मी तरी आजपर्यंत कोणत्या बँकेत CLCSS आणि CGT MSc चा बोर्ड पाहिलेला नाही. तुम्ही केळकर आहात म्हणजे तुम्ही बोललं तर चालेल ना? हो नक्की चालेल. हॅलो. हा हो चालेल सर चालेल. तर whenever you go to or have anybody, हे ललित गांधी साहेबांनी पण मगाशी छान सांगितलं की तुम्हाला कुठेही तो बोर्ड दिसत नाही की CGT MSc आम्ही देतोय, CLC. तुम्हाला कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन सगळ्याचे त्यांच्या प्रॉडक्ट. आज टुडे वी कॉल इट बँकर्स मध्ये पण बँकर्स ना आता इथेच लक्षात घ्या, दे आर ऑल्सो सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स. त्यांचे पण प्रॉडक्ट्स आहेत. दे हॅव देअर ओन फायनान्शियल प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू देअर इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिअल इस्टेट. त्यांचं होम लोन आहे, त्यांचं ऑटोमोबाईल रिलेटेड त्यांचे कार लोन आहे, त्यांचे पर्सनल लोन्स आहेत. तुमचं प्रोडक्ट जे आहे ते प्रोडक्ट RBIच्या डिरेक्टिव्ह नुसार कमर्शियल बँकांना दिलेले डिरेक्टिव्ह आहेत की क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्ट फॉर मायक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस. हा ट्रस्ट, हा सिडबीचा ट्रस्ट, तुमची दिलेली अमाऊंट ही इन्शुअर केली जाते गव्हर्नमेंट कडनं की या अकाउंटला काही झालं तर याची प्रोसेसिंग फी आणि याची शुअरिटी ही गव्हर्नमेंटने घेतली आहे. बरोबर आहे? याच्यासाठीच तर हा ट्रस्ट केलाय. याचं एम्फोसिस त्या इंडिव्हिज्युअलनी नाही केलं. इंडिव्हिज्युअल जो कोणी एंटरप्रिन्युअर आहे त्यांनी नाही केलं तर बँक कधी पण आपण स्कीम सांगत नाही. आणि तुम्ही जसं म्हणताय की एनकरेज करत नाही, तुम्ही डिस्करेज म्हणालात, मी म्हणेन डिस्करेज करतात. तर याच्याकरता सर्वात चांगलं सोल्युशन आहे की तुमचं जे काही सर्व्हिस एंटरप्राइज असेल त्याचं तुम्ही बॅलन्स शीट व्यवस्थित जे काही असेल, तुमचे फायनान्शियल प्रोजेक्शन्स असतील त्या घेऊन तुम्ही, इफ यू आर अ सर्व्हिस प्रोव्हायडर, तुम्ही स्टार्टअप कॅटेगरीमध्ये येत आहे का तुम्ही रेग्युलर सर्व्हिस प्रोव्हायडर मध्ये येत आहे आणि तुमच्या फ्युचर मधल्या फायनान्शियल प्रोजेक्शन्सवर तुम्ही चांगला अभ्यास केलेला असेल तर यू अप्रोच अस. I will suggest you the way out personally. Okay, sir. Thank you, Abhay sir. Thank you very much. I thank all the panel, all the participants first, and the first big thank to Abhay sir for sparing time. I know you were connecting on and off to Mumbai, Delhi, and I was calling you, sir, please join. I really thank you for your valuable time, Abhay sir. A special thank to Mr. Lalit Gandhi ji, Kishore Oswal ji, Swapnil Shah ji, Mr. Bipin Sheth for this collaborative effort so that all our members get benefited. Thank you very much, everyone. Once again, a great thank you to Abhay sir. And I have shared my email ID also. In case you have any questions,
please write to us at inspire@ariseforindia.com, and we will ensure those questions are taken to Mr. Daptardar sir. On the behalf of, as Mr. Abhay sir has requested, I'll share all 3-4 panelists who are there. We will connect with Daptardar sir so that we can meet him, talk to him with the problems or with the difficulties that members have, and we take it further. Thank you. Thank you, Abhay sir. Thank you, thank you very much, everyone. Let me express, sincere thanks to Dr. Rajendra Purwale and all the panelists and Mr. Lalit Gandhi sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Having you all here, I have enjoyed this webinar. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Beniwale sir, are you there? Sir, bola na. Sir, how can I connect you? My number you can note down 98220. Just one sec. I'll note down. Lalit Gandhi sir has my number. Okay, I'll take it from him. No please. But you can note down 98220 56958. 98220 56958. 56958. Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Are you going to end the session, or there is any panel discussion is going on? No. It's going to end now. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. And we will catch up. We'll catch up for sure. This is just the beginning. Yes, sir. I agree. And I'll thank you for conducting this kind of seminar and discussions. Thank you so much from the VTP Association and Westmac. Yes, sir. Yes. Thank you to all. Yes, thanks.